prelims is probably the harshest and brutalest of all the UPSC stages because it's a test of rejection. And we have realized that our मतलब हमारा एक initiative है, our focus is we are very desperate on making everyone clear prelims because we have seen a lot of good candidates, a lot of smart candidates not being able to clear prelims due to wrong direction, due to misguidance, due to wrong approach that they are studying. It's not that they don't study, but the approach, the understanding, the decision on what to study, what not to study is entirely wrong for them, and it actually leads them to costing a year for them. We are actually nurturing you to clear prelims comfortably. Our initiative, our motto, our objective is very simple. We want you to clear forest cutoff. Whether you are appearing for forest or not, whether you are eligible or not, doesn't matter. The philosophy lies in the fact that you must clear cutoff comfortably, even if there are 2-3 questions which UPSC plays a bit of trick in terms of giving keys. If there are 1-2 questions which may or may not get dropped, we don't want to be dependent on such kind of variability to make our chances for writing up the mains. That's a very simple thing. Preparation is only 50%, rest 50% is performance, and that comes from the mindset. You need to have a logical exposition to actually apply all of these knowledge in the real exam, real mindset when you actually have like मतलब धूप है अभी पता नहीं चल रहा क्या है प्यास भी लग रही है and then you need to take a guess whether like Chandraketu is in Odisha or West Bengal. Then that actually comes the mindset, and this entirety is actually covered in the program. So this our approach is absolutely foolproof. I mean, with content, with understanding, with experiences, with wisdom, with the test series, with everything that we are doing, it's I don't think like any product, any program, any course that exists of such level currently. आई ऑलवेज से दिस कि भाई भगवान ही रोक सकता है अब मतलब Yes. यूपीएससी में तो दम नहीं है कि प्लेन्स रोक दे Science and tech, environment and economy, there will be specialized focus on it. Environment will be dealt by both me and Manish, क्योंकि Manish बहुत ही अच्छा, Manish has excellent command over science and tech because I myself have gotten many things clarified from him. तो अपने मन से नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई आज मेरे मन में ये आइडिया है तो मैं चलो इस पे क्वेश्चन बना लेता हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, ऐसे ही समझ लो जैसे स्केलेटन की है वो भी एक कि भाई एक कुछ आइडिया है उसके पास ऑलरेडी और उसमें से ही उसको क्वेश्चन बनाने हैं। तो ऐसे 13-14 थीम्स हैं जो आइडेंटिफाई करे हैं मैंने थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। तो तुम उनको देखना और समझ आ जाएगा कि भाई ये ऐसे रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है पेपर में, है ना? कि मतलब इतना बड़ा पेपर है तो कुछ ना कुछ फिलॉसफी तो होगी ना हर क्वेश्चन के पीछे कि भाई तुम्हें इतना बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है तो क्या फिलॉसफी है जो एग्जामिनर फॉलो कर रहा है। those who haven't cleared, those who don't know what it takes to get those marks, can say anything which are actually not relevant, not practical, and not suggestible. So, like to give you an example, मैं बोल दूंगा कि you need to write 4 different books, but you cannot read, write, and revise 4 different books at 4 different times because there is limited paucity of times, and you need to balance prelims, you need to balance mains, you need to balance your optionals together. There is an element of ethics as well, and if you are like appearing for forest services, then some part of your forest optionals are needed to be prepared before prelims as well. I'm not saying in the entirety, but at least you should know what are the contours, what are the designs, around what themes the questions are being asked, and then you can pick up those optionals after completion of your civil services exams, not before that. So to begin with, welcome to this skeleton key for prelims 2026 webinar, whereby we are actually nurturing you to clear prelims comfortably. Our initiative, our motto, our objective is very simple. We want you to clear forest cutoff. Whether you are appearing for forest or not, whether you are eligible or not, doesn't matter. The philosophy lies in the fact that you must clear cutoff comfortably, even if there are 2-3 questions which UPSC plays a bit of trick in terms of giving keys. If there are 1-2 questions which may or may not get dropped, we don't want to be dependent on such kind of variability to make our chances for writing up the mains. That's a very simple thing. And you know what? I'll talk about it. Prelims is probably the harshest and brutalest of all the UPSC stages because it's a test of rejection. And we have realized that our मतलब हमारा एक initiative है, our focus is
we are very desperate on making everyone clear prelims, because we have seen a lot of good candidates, a lot of smart candidates not being able to clear prelims due to wrong direction, due to misguidance, due to wrong approach that they are studying. It's not that they don't study, but the approach, the understanding, the decision on what to study, what not to study is entirely wrong for them, and it actually leads them to costing a year for them. So and to actually not have it, me, Manish and Naman, we have assembled together to give you whatever best that exists in the market, and it's a foolproof strategy, foolproof approach, whereby we are actually coming up with a solution which can cover every possible contour that can appear in the prelims exam, whether it can be the non-negotiables of getting the basic foundational questions correct, whether it can be of approach of finding pattern in randomness, whereby uh, we particularly, Manish, have traced certain sources whereby repeatedly UPSC is asking questions from, and these two work in conjunctive use of the skeleton key sessions, whereby Naman has identified with his skill and with his knowledge how to actually read the mindset behind the putting up MCQ, what kind of thought process that actually goes in when an examiner picks up the statement, creates options, and lays down traps. Understanding of that would actually help us in maneuvering certain areas whereby our knowledge gets a bit limited in answering those questions. But remember, skeleton key does not work in isolation of the non-negotiables, and non-negotiables do not work in isolation with the skeleton key. To introduce myself, I am Nikhil Joshi. I have been appeared for 3 UPSC interviews till now, and I have successively cleared 4 prelims, out of which 3 were for the forest services. My friend Manish has been a consistently high scorer for the forest services. He has scored 115 plus marks on more than 3 occasions, and in one of the occasions, it was as high as 130 plus. I mean, I was also aghast by the marks that he was scoring, and to the amazement, my friend and my colleague Naman actually is an expert in clearing prelims with very limited understanding of the, like, very limited efforts, but high understanding of the MCQ pattern, the syllabus, and he has actually done it number of times, considering that he cleared after, like, he got the final results, and unfortunately could not find his name in the final list of selection. So those stressful 4 or 5 days of gap, actually he could manage them beautifully, and then come out victorious of the, like, one of the trickiest stage of the prelims. Firstly, I would want you to give a one point that we absolutely are desperate. I cannot, like, lay any much more emphasis on the fact that we want you to clear prelims. As simple as that. Why? Because it is one of the, like, brutalest, cruelest stage of the entire UPSC process. It actually is a test of rejection. It does not select you. UPSC does not gain anything from making you select. It's actually, its approach is to filter out all the candidates which are actually, like, not above the cutoff. It does not see what kind of optionals you have prepared, what's your understanding, like, what's your status in terms of, like, mains GS, what's your status in terms of essay writing. UPSC does not know anything. It only knows if you are above the cutoff or not. That's it. And that can be by hook, by crook, anything. There is no column which says that how many hours of effort that you put in. There is absolutely no column. It only knows that if there is an answer for it is B, then you should have filled that B. It does not ask whether you have studied Lakshmikant or not, whether you have rectified it or not. The margin for error is very limited, that the filtering out actually leaves out many of the good candidates behind the bar as well, and that actually leads to pain, disheartening of not only themselves but their families, and, like, people like us who are actually working with such candidates, who are friends with them, who are actually mentors for them, and that eventually lead to, like, uh, them losing the legitimacy for the entire preparation. What I mean by legitimacy, everyone would ask that अच्छा प्रीलिम्स निकला क्या, मेंस कब है, कौन सा ऑप्शनल है, क्या कर रहे हो. तो in every case,
being able to clear prelims at least once would bring in legitimacy of yourself, of your preparation, not only eyes of you, but also in the eyes of your parents, in the eyes of your friends, crushes, partners, girlfriend, boyfriends, whatever may be the case on the like lighter note. But the legitimacy itself plays a significant role in boosting your confidence. You would know that till now you don't know whether you are preparing for the UPSC, you are doing it correctly or not, whether the sources that you are following, whether you are able to justify themselves by your preparation or not. And also, like, you don't know, I mean, how correct you are on the path of it. यूपीएससी का कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है कि ये 5-6 किताबें आएंगी तो फिर उसी किताबों में से क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर दोगे, ऐसा होता नहीं है. So you don't know कि whether you are on the right path, whether you are on the right track or not. And most importantly, once you like clear the prelims, you would get that one match found. I mean, if you have cleared or not, but searching your name in that result list and the all the anticipation while coming of the result, and then searching of your result and in that PDF by someone like put in the directly search them, someone scroll through them. But with respect to everything, this result of one match found brings a lot of like a tremendous amount of satisfaction to you, whatever may be the case. But trust me, if you haven't like cleared prelims till now, this is one thing that you should look for. And the uh, opportunity of finding one match found actually means that now it has been a one-way communication till now. You have been filling in the forms to UPSC, you have been paying in the fees. UPSC doesn't know anything till you clear prelims. UPSC doesn't give like anything about any idea, any iota about who you are, what you do. You are just a candidate for them. But once you clear the prelims, they ask you, they invite you to fill the DAF one, and then suddenly there's a discussion of DAF one. Then suddenly you meet people who are of your own optional. Then you look for ethics, you look for essay, you start and find different anecdotes. You start and find anticipate what you are. You start and look for like different sort of preparations that you need to do, what sort of pen that you need to get. You ask people कि भाई prelims निकला तो है, अब mains के लिए कैसा करते हैं. The entire atmosphere, the entire morale, everything changes, and suddenly like your parents also feel this joy, the proud, everything with it, that कि नहीं यार बेटे कुछ तो निकला, मतलब अभी तो कुछ तो हुआ है. And it, trust me, it gives a tremendous amount of boost to your personality, your approach, everything. And to be very honest, I have like appeared for the MBA interviews, and there people would actually come up with a achievement that I have cleared 2 prelims. I mean, yes, of course, it doesn't mean anything, but it means a lot for the rest of the other people. So be very considerate of it. Be very fascinated by it that you need to clear prelims, क्योंकि हर मेन से पहले prelims ही आएगा, देखो कभी भी. And next would be mains and interview is a lottery pot. I mean, you can say whatever you say. We are just, there is a tremendous variability that is involved, and in terms of that variability, you can minimize the variability by various factors. Like if you are good at writing things, then you have reduced a bit of variability. If you can like, if you have good command over PYQs, you have also reduced a bit of variability. But variability does exist, so that's a lottery pot. But once you don't clear the prelims, na, your name doesn't even enter in the lottery pot. I mean, what I want is at least my name should be there in the game of chances. If my name is not present in the game of chances, then there is a no chance that I'm gonna like clear the exam. At least you should be there in the process. You should be there in the lottery pot. There, if even if there is like stroke of luck on your side, you should have that opportunity to leverage, realize, and ravish that stroke of luck. I hope like I'm able to. I cannot like emphasize more on how desperate we are to actually make you clear prelims. And one more thing, we don't only want you to clear prelims, but we want you to clear it comfortably. Why? I have like talked it again and again, but I want to reiterate it one more time. Firstly, now in quite a few days,
since past 3-4 years, the prelims result comes after like 10-15 days, and there is a the gap between prelims and mains is close to of 110 days. So if you are on the border, I know that you will be anxious for it. You'll be debating on n number of debatable questions. You will be bringing in sources. You will be bringing in different kind of arguments, and you'll spend most of your time either on the like Telegram or other platforms, or you will be debating and contemplating within yourself about whether you will be clearing the prelims or not, and that would actually lead to you wasting those 15 days. And if out of 110 days you are wasting like actually 15 days, you are actually like wasting 15% of the time. And trust me, I mean 15%, if you look in terms of like the magnanimity and the proportionality, it's a huge time. Some of the people who actually regularly clear mains, they use this 15 days to actually complete one paper of the optional, and you are just behind them for the entirety of the cycle of the mains. Only if you are like smart enough, you know what to write, you will be able to catch up, but in rest of the case, there's no chance like you are going to catch with them. Next would be the emotional drain. What happens, like there is a anxiety, and then everyone like there is hawabazi on Telegram and everywhere that result कब आएगा, result परसों आएगा, मीटिंग चल रही है, समोसे लेके गए, and you are glued to your phone, you are glued to your channel, whether your name would be there or not, whether your name would be there or not, कल आएगा, फिर then someone comes and says कि उसका आंसर तो B है, then again your morale goes down, then someone comes and says इसका आंसर तो D है, then you said अरे भाई चलो एक तो बढ़िया हो गया. The entire cycle remains in, and the result comes in, and you thankfully you got your one match found result, you have cleared it, but you have gone through a lot of so much of a roller coaster of emotions in past 3-4 days. You have left with very limited emotional bandwidth to actually regather yourself and start again for the means, which is actually the challenge. And here, just clearing it won't mean much. You need to clear it with flying colors. You need to have cutoff plus 50, cutoff plus 100, cutoff plus 120 marks to actually get the desired service for you. This emotional drain is actually one of the reason why uh, the bandwidth gets reduced, and the efforts are actually not being transferred into actual output for the study. Third thing would be the question and the key. So there are questions which are getting dropped. There are issues with respect to key, and the randomness also exists in there. The very good example of it can be the questions related to high court, the question related to, I think, the contempt of court, the question related to the urea, and rest of the other things. Every year, 3-4 such questions exist which actually bring in variability. And if you are like just on the border, if let's say everyone says the cutoff is 92 and you are getting 92 95, then you rely on those questions, and there's a good chance that that can be a game changer whether you will be in or not. मतलब you have to decide कि where on which side you will be. या तो कोर्ट केस में चले जाओ कि भाई मैं तो कोर्ट केस करूंगा, ऐसे आंसर की कैसे चेंज कर दी, प्राइम मिनिस्टर से कैसे प्लेसमेंट करवा दी बजट की, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है तो, या फिर दूसरा केस है कि कंफर्टेबली प्रीलिम्स निकाल लो, 200 पर नंबर ले आओ, 110 पर नंबर ले आओ. 2 तरीके हैं. अब देखो दूसरा तरीका जो है वो आसान है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है. पहला तरीका तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. तो ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल दोज थिंग्स व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल. एंड उसके बाद में सबसे बढ़िया तरीका है कि आईएफओएस जो भी एलिजिबल है, आई फील कि वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल और रादर बिगेस्ट हर्डल इन द एंटायर आईएफओएस प्रोसेस इज क्लियरिंग प्रीलिम्स. To give you an anecdote, there is a very good friend of mine, same belonging to my college. He was very good in his optional, which was physics, but he struggled a bit with respect to GS, and uh, he always used to tell me कि यार निखिल, एक बार अगर प्रीलिम्स निकल जाए ना फॉरेस्ट का, तो फिर मैं सर्विस निकाल लूंगा. एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो मैं सर्विस निकाल लूंगा. And that actually happened also. The year he cleared prelims for the IFOS, he got the service for it. And for him, getting into civil services was a bit difficult because his GS was on the lower side, and he always accepted that mistake also, because he is saying, I have limited resource, I have limited time, so whether I would be like mastering the physics or whether I would be mastering the GS, there is a like trade-off between only these two. So few of you who would have been like clearing civil services for again and again, but not being able to clear forest cutoff, I think you have come to the right place. I don't think anyone in the market, anyone in the coaching industry would say that
or anyone in the mentorship arena also would say that we are working for clearing the forest cutoff. But we at NFU actually are, and since this has been our philosophy since the beginning itself, that there is absolutely no point in fighting for something which is like clearing cutoff because the variability actually exists there. But variability gets significantly reduced once you target the philosophy of 110 plus. And to speak about why do actually people fail to clear prelims, let it be of the forest cutoff, but even for the prelims, first thing would be what they do is they get non-negotiables incorrect. I hope like all of you have watched our session on non-negotiables and what the philosophy behind it. These are those questions which are actually come from the standard textbooks, and those questions from which those areas from which questions are repeated every year, whether they can be polity, whether they can be modern India, whether they can be history and rest of the other thing. What happens that those who get non-negotiables incorrect, their chances get significantly reduced of clearing the cutoffs, because if let's say this is the cutoff, then every non-negotiable that they get incorrect makes them go behind the cutoff. I'm not saying whether they are able to like clear the prelims or not. That's a different thing. वो तो अलग ही है. But cutoff से ही पीछे जा रहे हो यार. ये मेरे साथ होता था एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता था क्योंकि सिंस आई नेवर प्रिपेयर्ड नॉन ये स्टैटिक पार्ट आफ्टर माय 2021 प्रीलिम्स क्योंकि आई वाज एंगेज्ड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड ऑल सो ड्यू टू दिस आई यूज्ड टू गेट नॉन नेगोशिएबल्स रॉन्ग है ना मतलब माय एक्यूरेसी वाज समवेयर अराउंड 70% इन दीस एरियाज so that was actually costing me I was getting saved due to my skeleton key and all matlab all those things which I was using to read the how questions are made but actually non-negotiables were giving me the strain or they were giving me the pain key will I be able to clear prelims or not है ना every time I was like I was touching the forest cutoff and I never cleared it so this is a genuine problem this is the genuine thing कि if you get these non-negotiable wrong कि जैसे इसमें ना आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन अरगट्टा है या फिर ऐसे ऐसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है महेंद्र बर्मन है इफ यू गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग तो कोई चांस ही नहीं है फिर तो मतलब इफ यू आर नॉट गुड एट अदर पार्ट जो मैं बता रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट गुड एट that part where we are finding the pattern in the randomness or the skeleton key and all if you are not good with that part then certainly you will not clear prelims मतलब certainly you are behind the cutoff that is for sure so non-negotiables are that's why it is named as non-negotiables. And I would ask you to also, like, if you have appeared for 2025, go and check out of these how many questions that you get incorrect if you have like not cleared. So this question, this is directly from Spectrum, directly from Spectrum, directly PYQ. See, our proposition is, I think 15 questions came from history, and Yes. Out of those 15 questions, at least 13 questions were straightforward questions. Straightforward. Yes. I am removing 2 questions. One question is this with respect to river of the sites, and then second question will be this Lahore one. Yes. Although both questions were solvable, but still I am assuming कि you are not good with this tukkebazi. So even then, these rest of the 13 questions were doable, and if you are not getting 13 questions out of these 15 then मतलब बहुत हाई चांस आपका प्रिलिम्स नहीं निकला होगा Exactly, बहुत high chances इसके लिए तो नहीं 15 निकला. के 15 सही थे मेरे ख्याल. Yes, I got 15 out of 15 correct. Like I have told now, so I'll be discussing that in time to come. These part, like this river wala thing, this is part of our booster series. I have always knew that river is going to be one of the theme in entirety of the historical sites, historical context. So I would lay special emphasis on connecting rivers with the historical sites, historical places, historical kingdoms, and etc. So I knew this was the question itself. I knew, and देखो अब इसमें only 1, only 2, only 3, only 4 तब भी मुझे इशू नहीं था. Still I got the question correct because I knew कि ये आने ही वाला है. This is one of the things. This is one of the booster area which I have found out. But apart from that, these questions like Matta Vilasa, Vichitra Chitra Fayan, then this Congress declare Swaraj, this Malay Peninsula, Sumatra, Java neighboring, these questions are absolutely from the book questions and you cannot get them incorrect. Same was the like other page also whereby they talked about the bronze dancing girl and bronze and other questions were there. Those questions were also very easy, and trust me, if you are not getting
prelims cleared, you are getting non-negotiables around that and that incorrect. and irony is कि people are going behind this Lahore one question, है ना? लाहौर Yes, क्वेश्चन के पीछे exactly. जा रहे हैं कि लाहौर वाली चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो हमें वो पढ़नी चाहिए। अरे भई ऐसे तो हज़ार चीजें मेंशन है एनसीईआरटी में, हाँ, सारी पढ़ोगे क्या? So you have to be practical. मतलब what things can be done, what things cannot be done. I always say control the controllables. Think control those things which are under your control. भाई ऐसे तो हज़ार चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, अब कल को वो अपने मामा का नाम पूछने लगेगा, ठीक है? मतलब हमारा कुछ भी पूछने लगेगा वो, ठीक है? मेरे घर में छिपकली कहाँ से उगी? उस छिपकली का बिहेवियर क्या है? वो कितनी ज़हरीली है? वो कुछ भी पूछने लगेगा। वो चीजें थोड़ी हम तैयारी कर सकते हैं। थिंग्स व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल यू शुड कंट्रोल दोज़ थिंग्स। मतलब अब ये चीज़ें कंट्रोलेबल हैं कि यार अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, रॉज़ सिंगल है, ये आपका सेडिशन वाला है कि रिलिजन इज़ ये दिस, सेडिशन हैज़ बिकम माय लॉ, है ना? ऐसे कुछ सेडिशन हैज़ बिकम माय रिलिजन। अभी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है डायरेक्ट, एनसीईआरटी में मेंशन्ड हो तो यू कैन ऑब्वियसली गेस कि किस टाइम पे ये बात बोली होगी उन्होंने। एनसीएम के बाद ही बोली थी ये बात, समझ रहे हो? उससे पहले तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब तक लॉ ही नहीं ब्रेक किया उन्होंने कोई। तो एंड इसके बाद में भी अब जैसे ये तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है। पॉलिटी, एवरी क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी कम्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, कैन बी ट्रेस्ड टू लक्ष्मीकांत और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. I personally haven't gotten any polity question wrong since 2021. The last question of polity I got incorrect was the definition of state. I reiterated it again and again. 15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो 30 नंबर तो आई एम पॉकेटिंग इटसेल्फ. फिर अब मुझे फर्क नहीं पड़ पड़ता कि वो गुच्ची मशरूम पूछ रहा है या फिर अब वो स्पाइडर पूछ रहा है, विगल डांस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है. आई डोंट केयर फॉर इट. Only thing I care for it, I find those questions कि जो बिल्कुल standard books है, because I have absolute command over standard books, because I have repeatedly done the active recall. Next challenge that they, next mistake that people do is they aversion to standard books. They go and run behind random coaching stuff, red, blue book, green book, yellow book, every book. And what happens, those books are compressed and condensed from multiplicity of standard sources. That is true. But what happens, the statement are actually derived from the standard books and they are not actually taken from this coaching material. And that actually leads to limited understanding of the concept. Notes are only good if you are like on being to consolidate the factual stuff. If let's say someone gives you a list of inscription, that is good. Someone has done the hard work for you. You have that list of inscription. You add it to your standard books wala cheese as a booster, and you are good to go. Same with you have a literature wala list. We have actually done this for the UPPCS exams, and we have like performed very well over there. We have come up with like a single page, a 40-45 page document, and 45 plus questions came from that document itself, and which can be directly traced. So such condensed crisp masala can be, you can use it, but don't run behind bulky notes, bulky material, which can actually is a substitute for the standard books. In cases where there is no standard book like economy, environment, rely completely on us. We'll take care of it entirely. But sources of polity, sources of economy, sources of ancient and medieval, art and culture, the sources of modern India, geography, you should be relying on your standard source. Next is focus on irrelevant questions and mocks. You go run behind open mocks, open test, and then paid test series, daily test series. Those questions, they know absolutely no role because they cannot mimic the language of UPSC. They cannot actually replicate the level of themes that UPSC asks, and of course, like I mean, the logical exposition that one needs to develop to actually solve MCQs with the limited knowledge that you have cannot be developed by you by using mocks. I mean, you have heard like from the n number of toppers that they have scored very less in the like one of the popular open tests that take place, and still they're able to clear prelims with flying colors. Because what? Because they have understood the themes, they have understood the demand, they have understood language, logic of everything. There is a theoretical proposition to this. Yes. Why these irrelevant question and mocks are not actually relevant for the exam is क्योंकि बना कौन रहा है. देखो आप ये क्वेश्चंस बना कौन रहा है. जैसे व्हेन आई वाज एट द प्रीवियस प्लेटफॉर्म, तो आई आस्क्ड द पीपल कि अच्छा चलो बताओ क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे कि आई हैव गिवन यू द आर्टिकल 21, नाउ फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. ठीक है,
तो अब वो क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर मैंने उनको टॉपिक दिया कि फाइनेंस कमीशन का टॉपिक दिया, फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन 15 फाइनेंस कमीशन कि क्या आएगा। अब फिर मैंने उन्होंने जो क्वेश्चंस फ्रेम करे और फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये चीजें सोर्सेज यूज करने हैं, यू हैव टू यूज द फैक्चुअल डाटा। तो वो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, जैसे इफ यू टू एग्जाम्पलीफाई, जैसे इस बार एक फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया था, 15 फाइनेंस कमीशन का, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वर फैक्चुअल इन नेचर। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स वर लाइक कि कौन से सेक्टर को कितना फंड्स दिया, और थर्ड स्टेटमेंट वाज कि कितना डेवल्यूशन होता है, 43%, 45% ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट था। सो माय प्रोपोजिशन इज यूपीएससी वांट्स यू टू नो कि कितना सेंटर स्टेट को फंड्स डेवल्यूट करती है, ठीक है, डिवॉल्व करती है, रेदर देन कि किस सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया। वो ह्यूमनली याद कर ही नहीं सकते आप। उसमें अगर वो गलत करेगा स्टेटमेंट को, कौन सी इंफॉर्मेशन वो चाहता है कि यार एटलीस्ट तुमको ये तो पता होना कि भाई फाइनेंस कमीशन का बेसिक काम क्या है, कि फंड डिवॉल्व करता है और फंड कितना डिवॉल्व करता है, 41%, 42% या 45%। तो आपको जो बनाने वाला होगा ना, जिसको एक्सपीरियंस होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं या प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, बनाने के बाद उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, वही जेन्युइन क्वेश्चन बना पाएगा। स्टेटमेंट फ्रेमिंग जब वो करेगा, स्टेटमेंट फ्रेमिंग करते हुए वो उन्हीं उसी लूप होल्स को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे यूपीएससी एक्चुअली पूछता है। कोचिंग वाले क्या करेंगे, जैसे आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, शी सेंट मी दिस व्हेन शी वाज गिविंग दिस 2025 प्रीलिम्स। तो वो कोई फेमस कोचिंग का मॉक लगा रही थी, तो एनवायरनमेंट का मॉक था। तो ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स के ऊपर जो प्रॉपर एकदम डॉक्यूमेंट होते हैं ना, गैजेट होता है, उसके सारे एकदम रूल्स उठा उठा के उन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। मैं क्या, ये पूछता ही नहीं है वो, तो पीवाई को तो उठा के देख लो, पूछता ही नहीं होता डिटेल में। अगर पहली बात तो वो पूछता ही नहीं है, और दूसरी बात यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता उतना डिटेल में हमें पता हो। भाई तुम सर्विस में थोड़ी आ गए हो अभी, ठीक है। वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार फंडामेंटली वो ये पूछेगा कि 5 बार सेग्रीगेशन करना है, या 2 बार सेग्रीगेशन करना है, 3 बार सेग्रीगेशन करना है वेस्ट का। बेसिक चीजें पूछेगा। अगर आपको वो ये पूछेगा कि जो आपने वेस्ट बनाया उस वेस्ट को आप ट्रेवल करवाओगे या नहीं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, मतलब बेसिक कॉमन सेंसिकल बातें पूछेगा, जो लॉजिकल बातें होंगी, जो लॉजिक के बेसिस पे आप डिराइव कर सकते हो वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर स्टेटमेंट बना रहा है, स्टेटमेंट में बनाते हुए बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं कि वो फैक्चुअल चीज गलत करेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव चीज गलत करेगा। फैक्चुअल चीज मतलब जैसे सौत्रांतिक एंड समित्या सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म के सेक्ट होंगे, बुद्धिज्म के सेक्ट होंगे, या हिंदुइज्म के होंगे, या शैविज्म, ऐसे किसी एक के होंगे, ठीक है। तो ये फैक्चुअल स्टफ है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट क्या होता है कि वाटर क्रेडिट इज अ इनिशिएटिव व्हिच फोकस इज ऑन दिस। वो डिस्क्रिप्टिव है कि उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो क्या-क्या काम करता है। तो या तो डिस्क्रिप्शन गलत करेगा, ठीक है, या फिर वो फैक्ट गलत करेगा। अब फैक्ट भी कौन सा गलत करता है, कौन सा गलत नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डिस्क्रिप्शन भी गलत करता है वो, तो डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीज को गलत करेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे अगर लिखा उसने कि तानसेन इन्वेंटेड सो मेनी रागास, या तानसेन ऐसे कुछ करके, सिंपल सी बात। अब तानसेन इन्वेंटेड सो मेनी रागा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसने करा ही होगा, लेकिन ऐसी चीज को गलत बोल भी नहीं सकता। वो डिस्क्रिप्शन में उस चीज में गलत करेगा, जैसे लेट्स से आर्टिकल 109 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर दिस जॉइंट सिटिंग, या आर्टिकल 108 या 1010, ठीक है। या फिर वो ऐसे एरिया में करेगा, ऐसे एरिया में डिस्क्रिप्शन या फिर फैक्ट चेंज करेगा वो जहां पे आंसर ऑब्जेक्टिव है, जहां पे आंसर आप पता लगा सकते हो कि इजीली आंसर पता चल जाएगा, और उसका आंसर वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। उसका आंसर वेल एस्टेब्लिश्ड है। आप मतलब अगर आप कल को जरा सा भी आंसर आपने चेंज किया तो तुरंत कोई ना कोई आगे बोल देगा भैया देखो हर 10 बुक हैं, 10 बुक के अंदर एक ही आंसर लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो अननोन एरिया में, जैसे जैसे वाटर क्रेडिट में जा रहा है, वाटर क्रेडिट है ही अननोन एरिया, वो पहली बार खुद से पढ़ रहा है उसको, वो स्वतंत्रता समिति की डिस्क्रिप्शन दे रहा है लेट से, तो डिस्क्रिप्शन उसको खुद नहीं समझ आ रही, इतनी गंदी गंदी इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, एग्जाम को खुद नहीं पता। तो ऐसे एरिया में जिस जहां पे उसको खुद को नॉलेज नहीं है, तो उस एरिया में वो डिस्क्रिप्शन जनरली चेंज नहीं करता। अगर करता भी तो कहां करता है वो सब, तो चलो मैं बताऊंगा जो मेरा रहेगा पार्ट स्केलेटन की वाला। लेकिन मेन बात क्या है कि जो क्वेश्चंस बना रहा है आपके कोचिंग के अंदर, पहली बात तो उसका कभी प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है। उसी तरह सेम सेम गोज विद दोज आंसर चेकिंग वाले पीपल, है ना, फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज। उनका खुद का निकला नहीं है, वो लग गए हैं कोचिंग के अंदर, उनको अपना पैसा वैसा कमाना है, ठीक है। तो उस चक्कर में अब उनको खुद तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फ्रेम करने के बाद क्वेश्चन में क्या चीज एस्पायरेंट से एक्सपेक्ट करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो वो कुछ भी रैंडम बना के डाल देंगे, उनको तो पता नहीं, उनका तो नहीं निकला। उन्हें तो लगता है कि भैया छिपकली घर में निकल के आई, छिपकली का क्वेश्चन बना दो। क्यों 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 बनाना है? क्योंकि यूपीएससी स्पीशीज पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई, एंड दूसरा भी उसका अल्टीरियर मोटिव ये भी है कि दे एक्चुअली फीड ऑन योर फियर ऑफ नॉट क्लेम, मतलब फोमो बनाना है ना। और तीसरी बात क्या है कि कहां से क्वेश्चन आया, वो हमारे मटेरियल से क्वेश्चन आया, तो फिर हमारा मटेरियल पढ़ो। पर उनका मटेरियल से ही उनके मॉक में क्वेश्चन आ रहा है ना, यूपीएससी में तो उनके मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और वो जानबूझ के ऐसा मटेरियल बना के आपको दे देंगे कि भाई मैंने
मैंने कुछ स्टडी करी है भाई, निखिल के घर से एक छिपकली निकली, मेरे घर से खरगोश निकला, या फिर ये मनीष के घर से कुछ क्रोकोडाइल निकला, सबके अपने-अपने घर से उन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिए तुमको, मटेरियल बना दिया, क्वेश्चन बना दिए। अब तुम लोग करोगे, तुम लोगों के यार मेरे से तो हो नहीं रहे क्वेश्चन, तुम उसका मटेरियल पढ़ोगे। तो इनडायरेक्टली इट इज़ अ वे टू सेल देयर मटेरियल, ठीक है? और उनको ये तो पता नहीं है क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। नॉन नेगोशिएबल्स वाली कांसेप्ट ही नहीं पता उनको। उनको तो ये है कि भई स्पीशीज़ पूछ ली, स्पोर्ट्स पूछ रहे, चलो चेस चेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा 2 साल से, 23 में भी आया था, 24 में भी आया, 25 में भी आया, चलो चेस पढ़ लेते हैं जाके, ठीक है? या फिर आपका डिफेंस पूछ रहा है, 2023 24 में शायद डिफेंस पूछा है ना? अब मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मेरे को तो नहीं लगता निखिल का कोई भी क्वेश्चन, मैं तो सारे गलत करके आया था वो, ठीक है? ऑल्दो आई अटेम्प्टेड देम और मेरे सारे गलत थे, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी मेरा प्रिलिम्स निकला था, ठीक है? और उसी तरह आपका मेरे ख्याल 23 में क्या स्पीशीज़ पूछी थी, 22 में मेरे ख्याल एग्रीकल्चर पूछा था, 20 में एग्रीकल्चर पूछा था। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता वो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। वो तो उसका उसका एग्ज़ाम का पर्पस ही यही है कि उसको आपको थोड़ा-सा शॉक देना है। अब शॉक देने का प्रोसीजर है भाई उसका, शॉक कैसे देगा? वो यही चीज़ें पूछ के तो देगा ना, चलो भाई मेरी मेरे क्या नाम है, मेरी 6th क्लास की गर्लफ्रेंड का नाम बता, या फिर तू चल मेरे फूफस का नाम बता। ऐसे ही तो शॉक मिलेगा ना आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूँगा, चलो अपने पापा का नाम बताओ, पापा का नाम तो आपको पता ही है अपने। समझ रहे हो ना? तो वो वाली बात है कि इसलिए इर्रेलेवेंट क्वेश्चन एंड मॉक्स, इसलिए मेरे तो जब मैं डिजाइन कर रहा था तो मैंने तो बोला था भाई टेस्ट सीरीज तो नहीं रख रहे कोर्स के अंदर, मतलब क्वेश्चंस बाहर के क्वेश्चन तो नहीं रख रहे। तो फिर हमें लगा कि क्या करें, तो निखिल का प्रोपोजिशन था कि भाई मैंने तो पीवाईक्यूज करे हैं सिविल सर्विसेज के और उसके जो मेरे को बेनिफिट करता है, तो हमने फिर सोचा कि उसी को डिजाइन कर देते हैं। सारे वी हैव कलेक्टेड ऑल दोस, उसी को एमटीबी बोलते हैं, इसी से तो एक्चुअली में कॉन्टूर्स ऑफ सिलेबस, कॉन्टूर्स ऑफ पेपर सब कुछ डिसाइड होता है। जैसे लाइक देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन मदर टंग, नेशनल मदर टंग डे और समथिंग लाइक दैट इन सीडीएस। Same year the question appeared in UPSC also. There was question on like I think the heritage sites. The same year questions appeared in heritage site in UPSC also. पॉलिटी में भी ऐसे ही होता है, सब हर जगह पे ऐसे ही होता है। मतलब my only additional thing that I was doing is exceptionally doing those PYQs well. मतलब मैं ऐसा था कि बिल्कुल चाट के जाता था कि you cannot like compete with me in PYQs, क्योंकि मैंने इतनी बारी करे हुए, क्योंकि और कुछ करता ही नहीं था, मेरे को रैंडम क्वेश्चन देखने ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और इन सब का ये सब बिल्ड होके लोग क्या करते हैं कि दे एक्सेसिवली फोकस ऑन द करंट because it's easy to pray. मतलब one of the biggest mistake that people do in their first, second, third attempt is focusing on current. मतलब एग्जाम से 4-5 दिन पहले I would ask them to like go and read the tables from the Lakshmikant. People wouldn't read it. True case, I can name people also. And what they would do, they would pick up some 365, 720, 100 जो भी 1001 जो भी है वो मटेरियल उठाएंगे और वो पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि they want to revise current. नहीं आता भाई current. Even if the issue with the current is, even if like you have identified the topic, you are not gonna get the exact statement, exact information with respect to current in the exam that was given in your magazine. But आर्टिकल 14 का क्वेश्चन है तो वही उतनी ही कॉन्टूर्स है उसके। अगर मतलब फिजिकल ज्योग्राफी साइक्लोन्स का क्वेश्चन है तो वही 4-5 ही कॉन्सेप्ट है उसमें, उसके बाहर कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आपकी क्वेश्चन सही करने की प्रोपेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही है कि मतलब करंट क्यों कम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ऐसे नहीं है, बट इट इज ओनली लाइक 10-15% ऑफ योर एंटायर सिलेबस, दैट्स इट। तुम अगर मतलब लाइक 3 घंटे 300 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर 40-30 घंटे पढ़ लो, मतलब बस दैट्स इट, इतना ही ये डिजर्व करता है। इसका आई ऐड, मतलब वी हैव एडेड, मैं शायद विश्वकर्मा पूछ रहा था कि करंट अफेयर्स होगा या नहीं, तो करंट अफेयर्स करवाएंगे। आई हैव अ वेरी स्पेशल एक्सपर्टीज कि करंट अफेयर्स को मतलब मैं मेंस के लिए भी 1 या 2 दिन में स्कैन कर देता था सारा करंट अफेयर्स। तुम कुछ भी ला दो मेरे आगे, मैं 1 या 2 घंटे में उसको स्कैन कर दूंगा। मतलब दिस आई हैव एक्सपर्टीज, दिस एक्सपर्टीज। तो पर्सनली आई विल डू दिस वर्क फॉर यू यू पीपल की आई विल स्कैन ऑल द मटेरियल। अब उसमें बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, या फिर आई विल टेक फीडबैक फ्रॉम मनीष आल्सो कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी जनरली एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, अब जैसे भाई वो तो इतने गत्था बना के दे देगा आपको 100 पेज का। अब उस 100 पेज के गत्थे में 1 या 2 पेज का काम का होता है मटेरियल बस। बाकी सब वो तो सब कुछ कहानी डाल देगा, स्पीशीज डालनी है, नेशनल पार्क और बायोडायवर्सिटी रिजर्व सब डालना, भाई वो तो स्टैटिक का पार्ट है, वो स्टैटिक में पढ़ते हो आप। अब उसमें से क्या करोगे पढ़ के? दूसरी चीज, अगर वो मान लो कोई लेट्स से कॉन्फ्रेंस हुई है, आपकी सीओपी कॉन्फ्रेंस हुई है। अब सीओपी कॉन्फ्रेंस से पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि उस पे क्वेश्चन पूछता क्या है। ठीक है? अगर मेरे को ये पता होगा क्या क्वेश्चन पूछता है, तो उसी के हिसाब से मैं उसमें से जो मटेरियल कंटेंट निकालना है, जो भी याद करने वाला हूँ, वो निकाल लूँगा। वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, तो विद इन सेकंड्स मेरे को पता चल जाता है, देखते ही कि ये काम का है, ये काम का नहीं है, वो मैं निकालूँगा, वो मैं आपको दे दूँगा। इसलिए हमने मतलब 5-6 सेशन रखे हैं शायद, ऐसे ही इकोनॉमी के निखिल लेगा 2 है,
और एक साइंस का, एक एनवायरनमेंट, ऐसे-ऐसे करके। तो वो हम अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, और जो नहीं पढ़ना होता ना, वो मतलब लिटरली डंप यार्ड में घेर देंगे हम, स्टैटिक में भी और करंट में भी, उसकी चिंता मत करना। वो हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने टाइम पे मैं प्रीलिम्स में भी करता था, मेंस में भी करता था, तो वो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? करंट अब अफेयर्स की। जैसे इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है कि आईयूसीएन स्टेटस स्पीशीज का हर हाँ, मटेरियल में आईयूसीएन स्टेटस रहेगा, बट तुम 10 12 15 20 25 साल के पेपर निकाल के देख लो, इट नेवर आस्क कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है। और रैंडम मॉक्स में मतलब व्हाई मॉक्स आर इररिलेवेंट, क्योंकि मॉक्स में यही कुछ पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इट्स अ वल्नरेबल स्पीशीज। फिर वो बोलेंगे नहीं यार क्रिटिकल एंडेंजर्ड तो आपको पता ही होनी चाहिए, उसकी तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। मैं बताता हूँ, जैसे आई वाज लुकिंग एट सम मटेरियल, है ना, तो उसमें सब क्या नाम है, एंडेंजर्ड स्पीशीज आईयूसीएन स्टेटस भी लिखा हुआ है, उसमें आपका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है, हाँ, उसमें मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसी चीजें लिखी हुई है जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम प्रीलिम्स ने तो आज तक नहीं पूछी। अब कोई बोलेगा प्रोसिपिस जोलीफ्लोरा पूछा था, भाई वो साइंटिफिक नेम ये थोड़ी पूछ रहा है कि वो क्या है, वो ये पूछ रहा था कि वो क्या चीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, क्या है, मतलब जनरल ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था उसने, ठीक है? तो वो साइंटिफिक नेम पूछता ही नहीं स्पीशीज के, ना आईयूसीएन स्टेटस पूछता, ना वो मतलब वो जनरल सी बातें पूछता है कि किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट क्या है, और हैबिटेट को वो लिंक करता है फिजिकल ज्योग्राफी से, कि आपका कंसेप्चुअल पार्ट यस। आपका क्लियर है या नहीं, वेजिटेशन कैसे बनता है, कौन क्लाइमेट से कौन सी वेजिटेशन बनेगी, कौन सा स्पीशीज आएगा, तो वो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछता है। लेकिन अब ये चीज लोगों को पता नहीं, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, डिफरेंस ही नहीं पता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सबको अब गत्था थमा के दे देगा 150 पेज का पीटी, आपको गत्थे पर पढ़ते रहो बैठ के, 4-4 10-10 दिन लगा दो, हफ्ता-हफ्ता भर। मतलब पर्सनली मैं तो 3-4 घंटे से ऊपर नहीं लगाता था पीटी को, जो भी आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको रीड करने में। देखा, स्कैन किया और अपना चले गए आगे। तो वो कैसे पता चलता है? वो एक्सपीरियंस से पता चलता है, पीवाईक्यूज़ देख के। पर्सनली मैंने 2018 से 25 तक के अलावा कोई पीवाईक्यूज़ नहीं देखे। निखिल ने तो खैर बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने उतने ही देखे। लेकिन उतने के बेसिस पे ही आई हैव माय प्रोपोज़िशन कि जो भी मेरी थ्योरी है कि क्या पूछता है, वो क्या नहीं पूछता। और बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो मेरी, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, और अभी तक तो गलत नहीं हुई है वो थ्योरी। अभी तक तो बिल्कुल गलत नहीं हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल स्कैन द मटेरियल। अभी मैं जैसे पॉलिटी का भी आपका बना रहा था अभी नोट्स वोट्स, है ना? तो आई वाज़ लुकिंग कि क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता। भाई बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ चीज़ें याद नहीं करनी है। अब लेट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट है ना? 11 ड्यूटीज़ हैं या 12 ड्यूटीज़ है, जो भी है। तो अब वो तो मैं नोट्स में नहीं डालूँगा, वो तो मैं बोलूँगा भई जाके पढ़ लो, या तो अपना ऐप पे खोल के पढ़ लो, या फिर लक्ष्मीकांत में देख के पढ़ लो। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो डिफरेंस ज़रूर मैं आपको बता दूँगा पॉलिटी, जो भी मॉडर्न वगैरह उन सब के अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि what is the special purpose with respect to non-negotiables of NFU is our special purpose is कि, or our special strategy or our pedagogy will be कि non-negotiable में first of all we will tell you the difference between what to read and what not to read, what to skip, what to dump, which content to be is to be dumped in the dump yard. Second thing is जो कंटेंट, जैसे इकोनॉमी में बहुत स्कैटर्ड कंटेंट है। अब 2-2000 पेज के आपके मटेरियल चल रहा है, 2000 का पेज का मटेरियल क्या करोगे पढ़ के? ठीक है, क्या पूछता है इकोनॉमी में? अगर आप देखो पर्सनली आपने 13 से लेके 23 तक के अगर सिर्फ पीवाईक्यू भी कर लिए, मतलब माय प्रोपोज़िशन इज़ अगर इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 तो आपके गलत नहीं हो रहे। बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, वो आपके करंट से हो जाएँगे। तो मेन मेन थिंग इज़ यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो डिफरेंशिएशन करने के बाद then we will go into other areas, randomness and all this enrichment and this mindset session skeleton की। first of all you will have to understand क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब देखो मैं आई वोंट नेम, लेकिन एक समस्या नाम की मटेरियल आता है, ठीक है? इतना मोटा गत्था आता है वो समस्या क्या पढ़ोगे वो करके पढ़ के उसमें से, मतलब मैं तो बोला भी था, मेरे कॉलेज का सीनियर ही है वो, ठीक है? जिसका वो इंस्टीट्यूट है। तो मैंने बोला सर क्या करोगे बताओ मेरे को आप, ठीक है? आप बोल रहे हो कि आपके मटेरियल से 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? 12 क्वेश्चन तो मेरे वैसे ही सही है आपका बिना मटेरियल पढ़े। 3 क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन बनाने के लिए आपका मटेरियल क्यों पढ़ूँ मैं? 12 तो मेरे वैसे ही सही है, और मैं फिर भी कंफर्टेबली प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ। क्यों है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अब छोटी-छोटी बातें, कोई एक मेरे को याद है, शायद पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड वाला कोई क्वेश्चन था 2019 में, या पता नहीं कब आया था, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि मेरे मटेरियल में है। मैं कहा क्या करोगे सर आपके मटेरियल में लिखा है। मैं मानता हूँ आपके मटेरियल में लिखा है, लेकिन मैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे निकाल दे रहा हूँ मैं उसको। मेरे को क्या ज़रूरत है आपका मटेरियल पढ़ने की? या जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कैसे-कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बेसिस पे निकाल दे रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है आपका मटेरियल पढ़ने की। आई बट ये तो होप मैं मेंस में भी बोलता हूँ कि अब जो मैं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा पेपर में, वो मैं पढ़ के क्या करूंगा? सिमिलरली जो मटेरियल मैं याद ही नहीं कर पाऊंगा, जो चीज मैं रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगा, जो चीज मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी नहीं पढ़ता। अब इतना 500 पेज का एग्ज़ैक्टली मटेरियल मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, ये क्या मैंने करूंगा मैं? सेम थिंग आई वाज़ टॉकिंग इन दिस यस्टरडे मेंस सेशन आल्सो, हमारा जो कोर्स था, तो मैं लोगों को यही बता रहा था
कि भाई अभी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, पहली चीज तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो बिना रिवीजन करे एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं होता है, पहली चीज तो, ठीक है। कम से कम 3-4 रिवीजन लगते हैं। 3-4 रिवीजन कब लगते हैं? जब एक्टिव रिकॉल, डिफरेंशियल लर्निंग दोनों काम किए हो आपने। अगर आप रेगुलर प्रोसीजर से जाओगे, जो रिवीजन वाला प्रोसीजर है, किताब उठाई और अपना पढ़ना शुरू कर दिया, तो 10-15 रिवीजन लगते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको पता चल गया कि आपको ये करके जाना है, एग्जाम में आता भी है, और आपने अभी कर लिया फरवरी में, लेट्स से आपने महीना भर लगा दिया उसको काम करने में, और प्रीलिम्स मेंस के बीच में आपने उसको उठाया ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिला, एक दिन का बाय बाय पासिंग रेफरेंस देख के आप उसको देख के जा रहे हो, तो वो आपने जो महीने में फरवरी का 1 महीना लगाया ना, वो सारा बर्बाद हो गया आपका। इसका मतलब यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर। प्लानिंग ही जीरो है, आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते आप। आपको अपना समय मैनेज नहीं करना आता कि किस किस जगह पे कितना एफर्ट डालना है, और कितना एफर्ट डाल के मैं इंश्योर करूं कि मेरे एफर्ट से रिजल्ट आ जाए। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि भाई लेट्स से निखिल भी प्रोपोजिशन डालता है, मैं मेरा भी सेम प्रोपोजिशन, मैपिंग तो हम करते ही नहीं। मैं तो कभी नहीं करे, मैं तो सारे क्वेश्चन गलत करके आता हूँ मैपिंग के, तब भी मेरा प्रीलिम्स निकलता है। मतलब गलत करता हूँ, नेगेटिव लेके आता हूँ मैं उसमें, ठीक है। छोड़ो तुम सही होना तो छोड़ो, मेरा एक भी सही नहीं होता, गलत ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी प्रीलिम्स निकल रहा है, निखिल तो करता ही नहीं। तो उस अब आप मैपिंग में पूरी दुनिया का मैप याद करके चले जाओ, क्या सेंस है उसको याद करने का? और अगर आप आर्टिकल 21 गलत करके आ रहे हो, आप ये महेंद्र वर्मन गलत करके आ रहे हो, आप डांसिंग बाउंसिंग गलत करके अर्घट्टे गलत करके आ रहे हो, द गर्ल आई वाज टॉकिंग टू शी सेड कि मेरा अर्घट्टे गलत हो रहा है। मैं कहा भाई फिर तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं प्रीलिम्स निकलवा दूं? बताओ, अर्घट गलत करोगे तो प्रीलिम्स कैसे निकलेगा? जनरल कैटेगरी को तुम वैसे हो। And देखो, one of the fundamental mistake that, again coming to the same point, fundamental mistake that people make is गलत चीजों पे फोकस कर लिया, अनकंट्रोलेबल्स पे फोकस कर लिया। जैसे अब क्या था पहले, आईआर, अब 2-3 साल आईआर बहुत आ रहा है, बहुत, इट इज गेटिंग एक्सेसिव focus from it, and trust me, in couple of years it will be gone. Same was with protected areas and the species as well. The 19, 20, 21 were the golden areas for the protected areas. Everyone would be coming up with the protected area material, would be preparing for it. And what happened since couple of years? It is gone. There is no question. With respect to species, now they have started asking obscure species and their behavior, which cannot be prepared. अब तुम कितने species prepare करोगे? So uncontrollables में issue ये है कि it's like preparing and looking for a crop, price crop by looking at the MSP of a previous year. पिछले साल का MSP देख के आप इस साल का क्रॉपिंग नहीं कर सकते, इस साल का MSP देखो ना भाई, which you can. इस साल का MSP क्या है? These areas would become every year. There would be no prelims paper without the questions around polity, without the questions around economy, physical geography, modern India. There wouldn't be any questions. And one of the best thing about this area is they have high accuracy because its contours are limited. You cannot ask something which is in polity, which is something beyond the basic constitution of the definition of rights, the fundamental duties, the parliaments, its officers, procedures, constitutional bodies, non-constitutional, इसके बाहर कुछ है ही नहीं ना. Same with modern में वही गांधीयन movement है, non-गांधीयन है. The press, education, tools of Europeans, these themes are there. Apart from that, there is absolutely no chance that bringing in another random theme. But in IR there can be a theme. Let's say they asked 1 year lakes, they may ask lake year mountain peaks. Which of the mountain peaks lie farthest away from the equator? That can be a question, absolutely. Would you be able to like map each and every mountain peak given in the paper and then solve the questions? No. And even if you would be able to, we will preparing for it by the case of randomness and booster sessions. I'm not saying कि we won't be preparing for it, but हमारी रोजी रोटी ये है भाई, additional जो है वो इससे कर रहा है. We are actually having the safety net for it. I gave a proposition yesterday कि I have a very theoretical basis कि मेरा प्रीलिम्स, जैसे मैं अपने प्रीलिम्स का एग्जांपल लेता हूँ और निखिल के और मनीष के प्रीलिम्स का। निखिल नॉन नेगोशिएबल गलत नहीं करता। पॉलिटी इकोनॉमी के अगर 30 सवाल आ रहा है तो उसके 30 के 30 सही हैं, अनटिल अनलेस कोई आंसर की गलत आ जाए तो, ठीक है। उसके 30 के 30 सही हैं। मेरे क्या है, मेरे लेट से 30 में से 21-22 सही हैं, मैं कुछ गलत कर दे रहा हूँ। लेकिन आई एम एबल टू कंपेंसेट दोस, जो भी 5-6 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गलत कर रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन मैं अपने उससे तुक्के वजह से सही कर दे रहा हूँ, जो भी मतलब मेरे स्केलेटन की मैं उससे सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या है कि मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है नॉन नेगोशिएबल्स के, मतलब लेट्स से नॉन नेगोशिएबल 60-70% एक्यूरेसी रख के स्केलेटन की को यूज करके मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है सिविल सर्विसेज का। तो इसका मतलब अगर तुम नॉन नेगोशिएबल से सारे सही कर दोगे तो सिविल सर्विसेज तो तुम्हारा पक्का निकल रहा है। एंड सेम थिंग कैन बी अप्लाई टू द निखिल स्कोर कार्ड ऑल्सो। निखिल वाज स्कोरिंग 15 मार्क्स अबव द कट ऑफ, है ना। उसके 115 लगभग आते थे, लगभग 110 से 120 के बीच में रहते थे।
तो 100 के करीब कट ऑफ होती है फॉरेस्ट की। तो उसके नॉन नेगोशिएबल तो सही हो ही रहे हैं सारे, उसके अलावा वो थोड़ा बहुत बूस्टर वूस्टर करके कुछ उल्टे सीधे हाँ, क्वेश्चन भी सही कर दे रहा है, ठीक है? तो उसका क्या हो रहा है, फॉरेस्ट निकल रहा है। तो बेसिक थ्योरी इज, मतलब फाइनल ओपिनियन इज, या ओपिनियन भी नहीं मैं इसको बोल सकता हूँ, इट इज अ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, कि अगर आपके नॉन नेगोशिएबल सारे सही हैं तो आपका सिविल सर्विसेज निकल जाएगा। अगर आपको फॉरेस्ट जाना है, इफ यू हैव टू बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, ठीक है, कि मेरे को फॉरेस्ट नहीं जाना, यू हैव टू बी कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल बनना है, तो कंफर्टेबल के लिए यू हैव टू यूज दिस रैंडमनेस एंड रैंडम एरियाज एंड ऑल, ठीक है, जो मनीष का एक्सपर्टीज है, और थोड़ा सा मतलब रीडिंग एग्जैक्टली, नोइंग हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज, है ना? हाउ, मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, एक बार आप ये समझ गए एमसीक्यू बनते कैसे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा भी कोशिश कर रहा था बीच में बताने की, लेकिन अगर एक बार आपको प्रोसेस समझ आ गया कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, वो बनने के बाद फिर आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप इधर उधर यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखोगे कि भाई ये सारे फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सारे फैक्चुअल में तो या तो सारे सही होंगे या सारे गलत होंगे, ऐसी फालतू वाली बातें नहीं करोगे फिर आप, ठीक है? अननेसेसरी, बिल्कुल एब्सोल्यूट बुलशिट बुलशिट वाली बातें नहीं करोगे फिर आप, कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो हटा दो। मतलब इट विल बी रॉन्ग टू से, लेकिन ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का एग्जांपल निखिल हमेशा बहुत बढ़िया देता है कि तुम्हारा एक ही बाप है। क्या ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? तुम्हारा एक ही बाप है, या फिर खाली कुछ कुछ साइक्लोन ही आई डेवलप करते हैं, केवल कुछ साइक्लोन, भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्या नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है? तो उसी तरह अब जैसे लोग बोलते हैं फैक्ट गलत है, फैक्ट हमेशा गलत होता है। फैक्ट तो मैं आपको हजार एक जगह दिखाऊंगा जहाँ फैक्ट गलत नहीं हुआ। वो आपको पहचानना पड़ेगा कि जब एमसीक्यू वो बना रहा था, वो आपसे कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है, कौन सी नहीं करता, उसके बेसिस पे फैक्ट सही या गलत होता है, ठीक है? उसी तरह आपका लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन गलत है, भाई ऑर्गेनाइजेशन क्यों गलत होता है, उसका रीजन समझा क्या आपने? कभी नहीं समझा, बस आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है। तो जहां भी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा आप काटा मार दोगे। आप देखोगे कि टाइम पीरियड गलत देता है हमेशा हिस्ट्री में, वो भाई देता है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्यों गलत देता है, उसका रीजन क्या है? जब तक आप रीजन नहीं पकड़ोगे, आपको रीजन पकड़ना नहीं आएगा, यू विल नेवर बी, मतलब आप फिर होगा क्या कि जहां पे हर क्वेश्चन में क्या होता है, चार पांच चीजें लग रही होती हैं, जो भी आप इसको तुक्केबाजी बोलो, ट्रिक्स बोलो, जो भी बोल लो, हर क्वेश्चन में चार पांच ट्रिक्स लग रही होती है। एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक्चुअली कौन सी ट्रिक लगाऊं, और वो गलत गलत ट्रिक को गलत क्वेश्चन में लगा देता है। अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा ना कि जो भी बनी है, जैसे मेरे को सारी चीजें पता है मार्केट में क्या चल रही हैं, लेकिन मैं जब लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, 50 मिनट की, उसमें आई गेव समथिंग 50-60 कीज, ठीक है? उसमें एक हर ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई थी मैंने जो लॉजिकली एक्सप्लेन ना हो रही हो। मतलब वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा कि यार ये जो हर जगह वैलिड हो रही है, उसमें भी फिर आई गिव अ कैविएट कि भाई 70% एक्यूरेसी है इसकी, 3 क्वेश्चन तो गलत होंगे आपके, आपको उसकी चिंता भी नहीं करनी है, होंगे गलत, सबके होते हैं, मेरे भी गलत होते हैं, अगर नहीं गलत हो तो मेरा फॉरेस्ट निकल जाता, होते हैं गलत, लेकिन उसमें बेसिक चीज क्या है कि अगर आप सीख भी रहे हो तुक्केबाजी या जो भी आप सीख रहे हो, तो उसमें आपको पहले तो रीजन पता होना चाहिए, नहीं कि किसी ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो मान लिया आपने उसकी बात। दूसरी चीज, ऐसी चीजें तैयार मत करो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई कल को वो एग्रीकल्चर पूछ रहा है, एग्रीकल्चर में कल को उसने सस्टेनेबल राइस इंटेंसिफिकेशन पूछ लिया, कल को किसी और को पूछ लेगा, आपके हाथ में नहीं है वो। आपके हाथ में सिंपल सी बात है कि राइस की बेसिक आपको कंडीशंस पता हो, कौन से कंडीशन में डेवलप होता है वो, आपको कॉटन की पता हो, बेसिक चीज एनसीईआरटी में वो चीज आपको पता हो, वो नॉन नेगोशिएबल है। अब उसको यूज कैसे करना है, उसको मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली। लॉजिकल वे, मतलब मास्टर की का नाम दिया था उसको मैंने, कि लॉजिकल वे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप डिराइव कैसे करते हो आंसर को। आपको वो चीजें वही चीज आपके कंट्रोल में, और आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। मतलब आई होप आई एम एबल टू मेक माय पॉइंट। एंड मतलब अब उस केस में, अब जैसे कल्चर है, आईआर है, मतलब ये इसमें वो स्टेटमेंट ही ऐसे बना देगा, वो फैक्ट से ऐसे पूछ लेगा कि इवन इफ यू आर कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट, तुम कितना भी पढ़ लो, देयर विल ऑलवेज बी अ +1 फॉर इट। कल्चर में तुम्हारे घर का के पीछे का मंदिर पूछता तो ठीक है, मेरे घर के पीछे का मंदिर मैंने पूछा तो फिर कैसे बताओगे? मेरे घर पे लगी हुई पेंटिंग पूछे तो फिर कैसे बताओगे? देयर वुड ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, हायर वेरिएबिलिटी इन दोस एरियाज कंपेयर्ड टू कि जो बिल्कुल ही स्ट्रिंजेंट एरिया है। बट with some booster sessions we have tried to find out a way to actually minimize this uncontrollability, and we have called it as a enrichment and random is not random wala approach. So the to explain it one more time, the prelims we have covered it as a pyramid of it. You need to have basic absolute control, absolute command over the non-negotiables, which I have talked about, like the issues of polity, a bit around economy, physical geography, basics of environment. If they ask you about the niche, acid rain, समथिंग अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल की कौन सा इसमें से गैसियस रिजर्वायर है और कौन सा सेडिमेंटरी रिजर्वायर है, तब यू कैन नॉट गेट दोस क्वेश्चंस रॉन्ग। मतलब दैट वुड बी सिन मिस्टेक, एवरीथिंग दैट यू कैन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
then you need to have a bit of enrichment कैसे होता है? Particularly in ancient and medieval, they ask about literature. There is a theme of asking about literature, and since 2-3 years I have first hand witnessed that literature पूछ सकता है. How did I know कि ये पूछ सकता है? Because it was getting reflected in CDS CPF वाले papers. So I actually prepared for it. एक लिस्ट बना लिया एक दिन बैठ के. हो गया फिर वो. उससे 1-2 सवाल सही होने लगे. हर साल एडिशनल 1-2 सवाल सही होने लगे. Same goes with the fact of, like, let's say historical sites. I got to know कि historical sites वो पूछ रहा है. And not only historical sites, but it asks about its location and importance, something sort of that thing. So I prepared like 7-8 maps, and those maps are like in entirety doing it. And one more thing that I got to know that if I am not able to getting these questions correct, then no one is. This happened in 2022, where there was this question around Ashokan sites and the states who was being asked to match with. I got that question incorrect, but thereafter I attempting the question knew that if I am getting this question in actually incorrect, then this is not going to decide the cutoff for anything. And of course, in 2022 I cleared the cutoff for forest as well. And with Manish, who is actually a very good friend of mine, I came in contact with him, and we are like very good friends throughout the cycle of preparation. And then he said, अरे मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स. जैसे I think this year he actually told me about what countries UPI would be operational. वो वाला क्वेश्चन पूछ सकता है. मैंने कहा हाँ यार, ये तो बता दे फिर. He actually told me कि ये questions है, ये countries है, and actually it appeared in the exam. So that is the level of pattern identification he has done, and at some point of time, it actually helped me also. And most importantly, you need to have a mindset. The preparation is only 50%, rest 50% is performance, and that comes from the mindset. You need to have a logical exposition to actually apply all of these knowledge in the real exam, real mindset, when you actually have like मतलब धूप है, अभी पता नहीं चल रहा क्या है, प्यास भी लग रही है, and then you need to take a guess whether like Chandraketugarh is in Odisha or West Bengal. Then that actually comes the mindset, and this entirety is actually covered in the program. So this our approach is absolutely foolproof. I mean, with content, with understanding, with experiences, with wisdom, with the test series, with everything that we are doing, I don't think like any product, any program, any course that exists of such level currently. And अब प्राइस पॉइंट वगैरह तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मतलब कि केवल 2999 है, अब उसमें तो मतलब क्या ही मिलेगा, क्या ही नहीं होता है, तो आप सबको पता ही है. एक डेट के लिए चले जाओ तो फिर 3000 रुपए लग जाते हैं. And उसमें भी that level पे we are, and most of us, I think you have come here after 1 or 2 prelims failures, and you would be knowing this is a very foolproof and like absolutely approach with multiple fallouts. If you are getting like non-negotiables incorrect, have a bit of questions correct by the enrichment and random is not random wala approach. Even if you are getting those incorrect, you will be able to solve them by the mindset, by the logical exposition, by the skeleton key tricks and etc. So मतलब इसके बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुम्हारा फिल्म रुक सकता है. ये तो बात श्योर शॉट है. मतलब अब बात क्या है कि ओनली इफ यू फॉल्टर एंड देन मतलब टेम्परामेंट ही नहीं रहा, मतलब आपका कभी हो सकता है. बस बाकी तो नहीं रुक सकता. I always say this कि भाई भगवान ही रोक सकता है अब, मतलब Yes. यूपीएससी में तो दम नहीं है कि प्रिलिम्स रोक दे. कि हाँ, अगर भाई भगवान ने ही रोक दिया कि भाई भाग्य ही खराब है तुम लोगों का, ठीक है, लकी खराब है, तो बात अलग है. मतलब वही मैंने बोला कि जो होगा वही जो राम रची रखा. अगर राम जी ने ही रोक दिया तो बात अलग है, लेकिन यूपीएससी में तो दम नहीं है कि वो ऐसा पेपर बना दे कि हमारा कट ऑफ पार ना हो. ऐसा तो नहीं हो सकता. इतना मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग है हमारे पास. दिस इज लाइक कि वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस एम्पेरिकल फैक्ट्स, है ना. ऐसे नहीं कि हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, ठीक है. मैंने खुद पर्सनली, मतलब मेरा तो ये लोग जानते हैं, ठीक है, मैं कैसे निकालता था प्रीलिम्स. तो मैंने खुद निकाला है. मतलब 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. मैं क्या, ठीक है, नहीं हुआ, प्रीलिम्स तो निकाल ही देंगे. तो वो एक जैसे मैंने बताया ना, अभी भी मेरे को पता है अगर मेरे को इस बार देना हो तो मैं तो नहीं स्टार्ट करने वाला 10-15 दिन से पहले. मुझे पता है कैसे प्रीलिम्स कैसे निकाला जाता है, स्टैटिक कितना पढ़ना है, करंट कितना पढ़ना है. करंट के लिए मेरे को 3-4 दिन चाहिए,
ठीक है, 3-4 दिन मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, करंट में उसमें आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी करंट के अंदर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माय स्टैटिक बुक्स। लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत के लिए आई विल टेक आउट सम आधा दिन, एक दिन, ठीक है, उसमें मार्क वार्क कर रखा है मैंने, मेरे को पता है उसमें मैंने प्रॉपर मार्किंग कर रखी है, 3-4 लेवल्स मार्किंग कर रखी है कि किस चीज को कब पढ़ना है। अगर मेरे पास 1 घंटा है तो लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है, 2 घंटे हैं तो लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है, 3 घंटे हैं तो क्या पढ़ना है, अगर मेरे पास पूरा 1 दिन है तो लक्ष्मीकांत क्या पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने मार्किंग कर रखी है लक्ष्मीकांत में, ठीक है। मतलब अभी मैं देख रहा था खुद ही कि मैंने उसके अंदर आधा घंटा भी अगर मेरे पास है, आधे घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी मैंने मार्किंग कर रखी है। मतलब ग्रेडेशन कर रखा है कि टाइम के हिसाब से क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी। But he has able to do it only after like practicing active recall again and again. मतलब you should be considerate of the fact कि एक बार आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ता है। अब वो एक्टिव रिकॉल को क्या है ना, एक्टिव रिकॉल को लोग जैसे एक पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं, ठीक है। ये मेरे को मतलब आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि मुझे उस टाइम पे जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 21-21 में, तो मुझे बता दिया था किसी ने, तो मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए थे, तो मैंने स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत वैसे ही याद करी थी सारी की सारी क्वेश्चन, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस बना के। लेकिन उसमें लोग गलती क्या करते हैं कि एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हैं ना, तो उसमें डिफरेंशियल लर्निंग नहीं करते। आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो एंड यू आर रिकॉलिंग एवरीथिंग, ठीक है, आपने रिकॉलिंग कर ली, रिकॉलिंग लेट्स से आपने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चंस बनाने का यू आर डूइंग एक्टिव रिकॉल, आपको लेट्स से पहली बारी में तो कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, सब कुछ भूले पड़े होंगे आप, तो आपको 10% रिकॉल हुआ, 90% रिकॉल नहीं हुआ, तो आपका क्या गैप कितना है 90% का, डिफरेंशियल गैप कितना है 90% का। फिर सेकंड रिवीजन करोगे, आपका डिफरेंशियल गैप 70% हो जाएगा, आपको 30% याद आ जाएगा, 70% भूल जाओगे। ऐसे ऐसे करके यू हैव टू रिड्यूस दिस गैप टू 10%, 5%, कि लास्ट में आगे मेरे पास सिर्फ 5-10% ही भूल रहा हूं मैं। और ये कम कैसे होगा, जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या याद है क्या याद नहीं है। आपको ये मार्क आपको माइंड को सिग्नल देना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज भूल गया हूँ, ये चीज 10% में आती है जो मुझे याद है, ये चीज 90% में आती है जो मुझे याद नहीं है। तो तुम अगली बार उसी चीज को फोकस पे पढ़ोगे कि मेरे को ये चीज याद नहीं है, इसी को पढ़ना है मेरे को। मतलब उसको फिर मैं कलर कोडिंग कर देता था उसके हिसाब से, मतलब वो मैंने प्रॉपर 7-8 मिनट का वीडियो एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बुक को याद कैसे किया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ये प्रोसीजर बहुत छोटा प्रोसीजर है, आपको 2-3 मतलब पर्सनली मेरे को तो 3 रिवीजन में स्पेक्ट्रम याद हो गई थी, 3 या 4 रिवीजन में, ठीक है। ऑल्दो इट टूक मी टू रिवाइज 4 टाइम्स, रिवाइज करने के लिए भी इट टूक मी 2 मंथ्स। एक रिवीजन के लिए भी बैठा तो 15-15 दिन लग जाते थे, 20-20 दिन लग जाते थे। रिकॉल ही नहीं हो रहा, वो बैठे हैं, मैं फिर मेरे को उस पे लग जाता था ईगो पे कि ऐसे कैसे रिकॉल नहीं हो रहा, करेंगे रिकॉल तो, ठीक है। तो वो बात है, वो तो चलो याद करने का बाद में बताएँगे एक्टिव रिकॉल कैसे करना है। लेकिन मेन बात है कि आपको ये फंडामेंटल फिलॉसफी समझ आ गई होगी पिरामिड वाली। फर्स्ट चीज़ नॉन नेगोशिएबल्स, ठीक है? उसके बिना तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। नॉन नेगोशिएबल्स अगर आपने निकाल लिया, सिविल सर्विस निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको फॉरेस्ट जाना है, ठीक है? आपको ज़्यादा मतलब स्टड बनना है कि भैया मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब नहीं आ रहा, मैं तो मेंस पढ़ रहा हूँ। ऐसा वाला माइंडसेट चाहिए तो आपको यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस मनीष एंड मी। मतलब मेरे कुछ तुक्केबाजी का जो मेरी स्केलेटन की है उसकी और रैंडमनेस की थोड़ी-सी मदद लेनी पड़ेगी। उसके बिना फॉरेस्ट इंश्योर करना मुश्किल है। और अब आप समस्या कितनी भी पढ़ लो, कोई सेंस नहीं है उस समस्या पढ़ने में। समस्या से फॉरेस्ट नहीं निकलता। और अगर किसी का निकलता है तो उसकी कैजुअलिटी है। उसकी कैजुअलिटी मनीष इज प्राइम एग्जांपल। मतलब उसका फिर मेंस नहीं निकलता। जो प्रीलिम्स के लिए इतने फैक्चुअल सब याद करता है, उसका मेंस नहीं निकलता। तुम कितने भी उदाहरण उठा के देख लो, जो प्रीलिम्स का एक्सपर्ट होगा 120 ला रहा होगा हर बार, उसका मेंस तो नहीं निकलता। ये तो पक्का है। मतलब वो भी एक उसकी एक अपनी कैजुअलिटी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। मतलब भई तुम्हें अपनी माँ को भी देखना है, अपनी बीवी को भी देखना है, ठीक है? दोनों में लड़ाई हो रही है, तुम्हें देखना है कि सुलह कैसे करें, ठीक है? किसी एक की साइड नहीं ले सकते तुम। तुम्हें दोनों से बना के चलनी है। समस्या वो तो है ही, अब क्या करें? चलो, तो टू बिगिन विथ टू लाइक एक्सप्लेन व्हाट आवर पेडागोगी इज, तो सबसे पहले तो देखो भाई शेड्यूल है। शेड्यूल में थीम्स दी हुई है, देखो पॉट थीम्स, उनको बहुत सिस्टमेटिकली देखना, मतलब बहुत कॉन्शियसली देखना कि है क्या वो थीम्स, एंड मतलब वो थीम्स पे आइडेंटिफाई करके उन थीम्स को relate those themes with the paper that you have appeared for or that you actually gave. उन थीम्स के अराउंड ही अपन को पढ़ना है। उन थीम्स को बिल्कुल जहन में बिठा लेना है। वी नीड टू इंटरलाइज देम, वी नीड टू इनकलकेट देम, वी नीड टू रिमेंबर देम, रिकॉल एवरीथिंग। वो थीम्स आर द परफेक्ट थिंग। दैट्स व्हाई लाइक आवर शेड्यूल टुक 3-4 days टू अराइव टू कम अप विद। इट्स नॉट दैट लाइक कि बस केवल डेट डालनी थी या फिर टाइम डालना था, बट वी नीडेड टू कम अप विद a thematic analysis of things. That's why in I will explain in schedule also some of the topics we have clubbed together, we have give them differently, so that you would be able to build interlinkages, and most importantly you would be able to identify from where the questions are coming from. And then after that there would be a network of sessions. There would be
four different types of sessions. First would be like all you need to know sessions. I'll explain them later what they differently they are. Then there would be booster sessions and there would be randomness sessions. Depending upon the sessions of what subject they are, you'll have to study them with handouts in conjunction with the standard book wherever they exist. And if let's say their standard book doesn't exist, are all you need to know and booster sessions have ensured that you don't need to follow them. You can completely rely on us. That's my promise, my vachan hai mera, jo bhi hai keh lo, but you can actually rely on them. And then once you have like watched the session, studied for a bit from the handouts and the standard books, you do the reinforcement and actually identify कैसे पॉट थीम्स एमपीटी लाइक माइक्रो पीवाईक्यू थीमेटिक टेस्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है. तो फिर ये माइक्रो थीमेटिक पीवाईक्यूज में you can not only reflect on your understanding of the PYQs, your understanding of the standard books and the sessions that you have actually watched, but also you will get to know future probability क्या है भाई, क्या पूछ सकता है वो, इस थीम से आता क्या है. बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में, तो किस हद तक बिल्स आते हैं ये आपको पता चल जाएगा. ऑफिसर्स पूछता है वो, तो फिर किस हद तक ऑफिसर्स पूछता है वो पता चल जाएगा. एंड अब इन सब के बाद में आफ्टर अ लाइक a chunk of syllabus is done for a subject, we'll have a active recall session. अब ऐसा नहीं है कि भाई कर लिया सामने चले गए और फिर पीछे का पता ही नहीं है. एक्टिव रिकॉल में you will be able to have the absolute command, you will be able to know कि कितना याद है, कितना reinforce कर लिया, कितना build किया, कितने linkages बना लिया, everything. And then उसके बाद में integrated we have like randomness session and skeleton key sessions to build you mindset, to make you leverage your knowledge, to make you apply your understanding and correlate it with UPSC का language क्या है, framework क्या रहता है, how it asks questions from it with the mindset sessions. And trust me, if you have done all of it, there is absolutely no chance that you are going to score less than 110 plus. मतलब मैं इसका बहुत prime example हूँ. I have never scored like less than 100 plus. Only one occasion I have scored 100 less than 110 was in the 2021, where I didn't know what sort of like what should be the optimum attempt that should I come up with. But before that and after that, every time I've scored 110 plus, and it is a tried, tested, and foolproof approach. That we have left no stone unturned here. We have left nothing untouched. We have included everything, everything. And with respect to sessions, so for all you need to know and booster sessions, there would be, we have categorized into two part of things. One sort of non-negotiable is polity, modern, physical geography, basic of environment. So there you would be having to use conjunctive use of sessions with the standard text. So if there is like say modern, there is spectrum. With respect to geography, physical, there is like 11th key geographies. These are standard, established, reliable sources. In polity, there is Lakshmikant. So the sessions would include you how to select, how to filter out, what to remember, what to read, and what not to read, from where to question come up. This is the one sort of one approach for it. Other would be the economy, environment, and science and tech, where there is no standard text. लोग बल्कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कोई 2000 पेज के हैंडआउट्स पढ़ते हैं किसी के, there is no point in, तुम नहीं कर पाओगे उसको, रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं कर पाओगे. So we, with our sessions and our handouts, have developed a one-stop solution. You can completely rely on us for these subjects, and you can go through sessions as well, since there will be like more sessions for these topics. So for like science and tech, there are only 2 tests, but there would be 6 sessions. Same with environment also, there are more than 6-7 sessions, and in every session we'll be covering everything that you need to know for that thing, so that you would not have to like read any samasya or whatever material that you want to read. Completely rely on NFU, completely trust them, and just like move on with it. Next would be booster sessions. अब जैसे क्या है कि कुछ एरियाज है, जब जैसे अब एंशिएंट एंड मीडिएवल है, जैसे मॉडर्न इंडिया है, पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है, where there are some certain basics, there are certain standard texts, there are certain concepts, but they are not sufficient enough to understand it, to actually answer the questions. So for that we have come up with booster sessions. They act as an additional enrichment for things, and the enrichment would only be done from the PYQ thematic. ऐसे नहीं है, अब जैसे उसने
IUCN का स्टेटस कभी पूछा नहीं है, तो फिर देयर इज नो चांस we will be asking, will having to do with it. But there is a good chance that they have asked up about certain developmental finance institutions. मतलब वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछता है वो, IMF के बारे में पूछता है वो, ADB के बारे में पूछता है, तो फिर इसके अराउंड स्पेशल सेशन बनेगा, स्पेशल फोकस रहेगा, so that you will be able to answer around it. उसके बाद में like randomness themes which Manish will talk about. So it's about the identification of such themes, building content around it, and actually excelling them. And skeleton key sessions would be there, which Naman talked about, like there would be the mindset, the psychology, the logical aptitude around it, how to eliminate, how to understand the psyche of the examiner, and how with what context, with what background he or she comes up while like framing one. Then there would be the active recall for the differential and active learning, so that you have absolute command over standard text and you do not get your non-negotiables incorrect. Trust me, do not get. And then there would be like on the popular demand, and of course we would know that there is an element of contemporary affairs and, or I would say, current affairs in a part of preparation. So we will be consolidating all the themes in the month of April per se, so that like when there is a dust settled down, when there is already paper being made, and you don't have to go to like reading on to 1,000 pages of content just to answer few questions. We would be giving you pinpointed, relevant, and absolute thematic oriented content with respect to it. Then there would be weekly mentorship session to track your progress, to ensure that we are connected, there is a differential focus on you. And we have particularly made smaller groups for the 2020 candidates to ensure that there is a one-to-one mentorship, there is a connect, there is a contact, and there is a limited gap in the communication. And This with is respect to this one-to-one mentorship, now you can contact any of our SIP or law student or ethics student. They will tell yes, you what do we mean by one-to-one. मतलब we are almost every time available. yes, मतलब मैसेज exactly. भी नहीं करते हैं, within 5 minutes I respond. And normally we talk on call, है ना? Normal बातें भी नहीं करते. और So with मतलब respect to that, you can talk any of. इसके साथ भी like yesterday itself I was speaking to someone and I said कि मतलब यार मैं थोड़ा सा डांट देता हूँ कभी कभी, बुरा तो नहीं लगता, नहीं से डारे, मतलब आप कोई अगर पहले डांटता तो फिर पहले क्लियर कर लिया होता, कोई बड़े भाई जैसा डांट रहा है तो फिर और क्या चाहिए. तो दिस इज अ इनफॉर्मेलिटी दैट, मतलब मैंने कहा ना कि वी आर डेस्परेट फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स यार, मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. मेरा कोई उसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं, कुछ नहीं है. एंड इवन इफ लाइक मतलब केवल 3,000 रुपीज में वी आर ऑफरिंग एवरी पार्ट ऑफ इट, एंड स्टिल पीपल आर आस्किंग फॉर इट. बेसिकली आवर पर्पस इज कि एक जो नैरेटिव बना हुआ ना प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स भाई साहब प्रीलिम्स सबसे खतरनाक स्टेज है ना, तो वो एक नैरेटिव ही चेंज करना है हमको. इसलिए वी हैव डिजाइन कि अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो वो सिर्फ प्राइसिंग के कारण कोर्स ना ज्वाइन करे कि यार Yes. ज्यादा है, ठीक है. एसआईपी लॉज हमें फर्क नहीं पड़ा, जिसको आना था वो आ गया, ठीक है. प्रीलिम्स के कोर्स में वी वांट कि एक तो नैरेटिव चेंज हो जाए, मतलब जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से मैं, निखिल और मनीष हम लोग बैठे हैं, ठीक है, कि प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स मतलब हाथ का मैल है, ठीक है, वो वाली बात है. तो एक ये नैरेटिव बनाना है कि प्रीलिम्स हाथ का मैल है, तो वो नैरेटिव बनाने के लिए यू विल हैव टू ज्वाइन. अब वो ज्वाइन करने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी रोड ब्लॉक ऑफ द प्राइसिंग. तो हमने सोचा कि यार लोवेस्ट लोवेस्ट क्या सकते हैं हमने, लोवेस्ट लोवेस्ट यही हो सकता है कि 3,000 है भाई. इससे नीचे तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी हमें पोर्टल का मतलब समझ रहे हो ना, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो उससे नीचे नहीं कर सकते. एंड वी आर मतलब इफ यू मतलब कंपैरिजन वाली बातें तो करने का कोई सेंस नहीं है. इफ यू विल कंपेयर कि पहली बात तो जो हम दे रहे हैं, द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग, ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक इन नेचर. पहली बात तो ये कोई दे ही नहीं रहा. अगर इफ यू इवन देन इफ यू वांट टू कंपेयर, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई इतना कुछ दे भी रहा है, ठीक है. और प्राइसिंग वगैरह की तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है. एटलीस्ट 1/5 1/6 रेट पे वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स. बाकी मतलब वो वाली बात होती है कि एस्ट्रोलॉजिकली इफ आई टॉक कि जब जब टाइम आता है ना मदद कर एक्चुअली चेंज होने का लाइफ में कुछ, तो हम उसी टाइम पे हमारे डिसीजन वही मैटर, उसी टाइम पे मैटर करते हैं. जब अभी टाइम नहीं आया होगा चेंज होने का, तो फिर यू वोंट चेंज योर डिसीजंस. वो सही बात है. बात है. And now like with respect to skeleton key, Naman would has talked a lot, but he will like give bit of idea about it. स्केलेटन की का सिंपल सा मतलब है कि देयर इज अ पर्टिकुलर स्केलेटन, हाउ एमसीक्यूज आर मेड, ठीक है. एंड दिस आई एक्सटेंडेड टू द एंटायर प्रीलिम्स. इसलिए आई मेड अ नेम, आई मतलब फ्रेम द नेम स्केलेटन ओनली, स्केलेटन की टू प्रीलिम्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ द कोर्स. तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्केलेटन, हाउ एमसीक्यूज आर मेड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एमसीक्यूज, ठीक है. तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एमसीक्यू बनाते हुए एग्जामिनर विल हैव अ स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है. कहीं से कुछ तो होगा ना, उसके पास खाका वाखा होगा, कहीं भी कुछ देख के ही बनाएगा क्वेश्चन वो. आज जब वो क्वेश्चन देख के बना रहा है,
तो उसको स्टेटमेंट डिजाइन करने हैं, 2-3 स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट डिजाइन करेगा। स्टेटमेंट डिजाइन करते हुए वो किस चीज को एज इट इज कॉपी कर देता है, किस चीज को कॉपी नहीं करता है, मतलब उसमें चेंजेस करता है। अब चेंजेस करेगा तो वो कौन सी चीज में चेंजेस करेगा, फैक्चुअल स्टफ में चेंज करेगा। अगर फैक्चुअल में करेगा तो कौन से सब्जेक्ट में करता है, कौन से टॉपिक में करता है, कौन से में नहीं करता, ठीक है। और उसी तरह अगर डिस्क्रिप्शन में चेंज करेगा, या तो फैक्ट्स में चेंज करेगा, डिस्क्रिप्शन में चेंज करेगा। जैसे लेट्स से समात्या और स्वतंत्रता वाला 2017 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, वो सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म में, अब ये फैक्चुअल स्टफ है, जैनिज्म का सेक्ट है, बुद्धिज्म का सेक्ट है, किसी का भी सेक्ट है, वो फैक्ट है, मतलब ठीक है। वो अगर मैं जैसे ही बोल दूंगा कि बुद्धिज्म का सेक्ट है तो एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट, उसमें कोई चांस ही नहीं है सही होने का, ठीक है। लेकिन अब स्वतांत्रिका समितियां, उनके कोई डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, बहुत गंदी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बहुत मुश्किल बुक है वो, बहुत गंदी इंग्लिश लिखी हुई है उसके अंदर, उतनी गंदी इंग्लिश को एग्जामिनर चेंज कर दे, ठीक है, इट इज वेरी टफ, मतलब इतनी वो हेडेक भी नहीं लेता। तुम कभी एमसीक्यू बना के देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि एमसीक्यू बनाने का प्रोसेस इट इज इटसेल्फ अ टीडियस प्रोसेस। उसको बनाते हुए हम ऐसा लोड नहीं लेंगे अपने ऊपर कि हमें पहले उस टॉपिक को रीड करना पड़े, समझना पड़े, ठीक है। अगर मेरे को लेट से शॉक वैल्यू देनी है कि आई हैव टू गिव सरप्राइज टू द पीपल, तो मैं कोई रैंडम एरिया पूछ लूंगा कि भाई मेरे घर में जो छिपकली लगी हुई है, छिपकली का बिहेवियर क्या है, चलो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब छिपकली का एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, कौन सी डिटेल सही है, कौन सी डिटेल गलत है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको रीड करूंगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अननोन एरिया में मोस्टली सारी चीजें या तो कॉपी कर देता हूँ, अगर कॉपी चेंज करता भी हूँ तो क्या चेंज करता हूँ, जैनिज्म बुद्धिज्म वो करते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या है, एमसीक्यू बनाते हुए कॉपी करता है, कॉपी करते हुए वो किस चीज में चेंज करता है, फैक्ट में चेंज करता है, डिस्क्रिप्शन में चेंज करता है, अगर करता भी है तो कहाँ चेंज करता है। मतलब एक स्टेटमेंट होगी, हर एक स्टेटमेंट में 3-4 फैक्ट्स होते हैं, 3-4 लूप होल्स होते हैं कि ये भी चेंज कर सकता है। लेट्स से जैसे मैंने बोला कि लेट्स से Naman Mansal has qualified for 3 civil services interviews. He gave the interviews in 2021, 22, 23 and he is optional of mathematics. ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं कि he gave 3 civil services interviews, तो सिविल सर्विस के इंटरव्यू ना दियो, किसी और के दियो, ठीक है। उसने 3 ना दियो, कोई और 4 दियो, 2 दियो। उसके बाद मैंने बोला ऑप्शनल उसका मैथ्स था, मैथ्स ना हो, कोई और ऑप्शनल हो। उसके बाद मैंने बोला क्या बोला मैंने उसके बाद कि ही गेव द इंटरव्यू इन 2021, 22, 23। अब उसने इन तीनों के अलावा किसी और में ईयर में दी हो, या फिर किसी कोई एक ईयर पर्टिकुलर चेंज, मतलब लूप होल्स है ना हर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में कितने लूप होल्स हैं, तो वो लूप होल्स मेरे को आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कहाँ लूप होल्स हैं, और जहां लूप होल्स हैं, ठीक है, वो मेरे को वो मेरा काम आइडेंटिफाई करना कि किस लूप होल को उसने चेंज किया होगा, किसको नहीं किया होगा। तो वो लूप होल्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। लूप होल्स आइडेंटिफाई करने का मैं उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। जैसे मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलना, ये मेरे उसकी आपदा है, ये मतलब ठीक है, ये आपदा है हम लोगों के लिए कि वो रैंडम क्वेश्चन फैक्चुअल स्टफ पूछ रहा है, लेकिन वही फैक्चुअल स्टफ उसके लिए प्रॉब्लम है एग्जामिनर के लिए। अगर वो उसके लिए प्रॉब्लम है तो उसको हम एडवांटेज के लिए यूज करेंगे अपने, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहाँ पे चेंज करता है, कहाँ चेंज नहीं करता है। तो एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नॉन नेगोशिएबल नहीं पढ़ता था 2021 के प्रीलिम्स के बाद, मैंने कभी नहीं पढ़ा। दोज हू नो मी दे नो कि मैंने नहीं पढ़ा, लिटरली नहीं पढ़ा। अभी मैं स्पेक्ट्रम ये लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहा हूँ, 2021 के प्रीलिम्स के बाद मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया है। डीडी बस एक आधी बार मैंने खोल ली थी, नहीं तो लक्ष्मीकांत तो मैंने 2021 के बाद कभी हाथ नहीं लगाई, ठीक है। 4-5 साल के बाद हाथ लगा रहा हूँ मैं। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरे को जब मेरे को यही समझ आ गया कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, बनते हुए लूप होल्स क्या हैं, मैं जब ये आइडेंटिफाई करने लग गया हूं कि कोई भी क्वेश्चन तुम मेरे को दे दो, मैं ये पहचान लेता हूं कि बनाते हुए वो किस चीज को चेंज करेगा, किसको चेंज नहीं करेगा। क्योंकि मेरा तो एक ही काम है, ये पता लगाना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और ये पता लगाने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि कौन कौन सी चीज को उसने गलत किया, कौन सी को गलत नहीं किया है। तो अगर मेरे को ये पता चल गया, ठीक है, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली पता लगा लूंगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, मेरा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल स्केलेटन की का सिंपल स्टेप प्रोसेस। पहले हम समझेंगे कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे लूप होल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लूप होल्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। एडवांटेज के लिए कैसे, वो कुछ मैंने 50-60 की निकाल रखी है कि भैया जैसे सन टेस्ट है, इनकम्प्लीट रिसर्च टेस्ट है, ये श्योरिटी टेस्ट है, मतलब बहुत सारे कुछ लिस्ट थी वो पिछले साल ही बनाई थी मैंने, स्पेसिफिकली क्यूरेट करी थी क्योंकि पिछले साल मेरे को वीडियो निकालनी थी। नहीं तो ये तो माइंड में था मेरे। क्वेश्चन करते करते नए नए टेस्ट बनते जाते हैं, नई नई चीजें मैं ईजाद करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो मेंटल प्रोसेस है सारे का सारा। लेकिन बेसिक थिंग आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट एग्जैक्टली स्केलेटन की एंड ऑल, कि आई एम आइडेंटिफाइंग द स्केलेटन विद इन द पेपर, विद इन द एमसीक्यूज, कि व्हाट इज द बेसिक स्केलेटन जिसके अंदर ब्लड एंड फ्लैश डाल के वो एक ह्यूमन का रूप ले लेता है, या फिर वो एक क्वेश्चन का रूप ले लेता है। तो वो चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो आई एम वेरी गुड एट दिस थिंग। मैं तो नॉन And नेगोशिएबल चीज करता था। now Manish will talk about his approach of pattern in randomness and how he actually came up with this. I mean, he has been someone who's been consistently scoring 120 plus in prelims when the cutoff used to be 75.
सो 2 लोगों के नंबर तो अकेला ही ला लेता था। हेलो गाइस। तो देखो यूपीएससी में क्या है ना कि कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया। यू वोंट हैव एनी सोर्स और यू वोंट हैव एनी फेमस मटेरियल कि जिसमें से वो क्वेश्चन निकल सके। तो फिर होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी अपने मन से नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई आज मेरे मन में ये आइडिया है तो मैं चलो इस पे क्वेश्चन बना लेता हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। ऐसे ही समझ लो जैसे स्केलेटन की है वो भी एक, कि भाई एक कुछ आइडिया है उसके पास ऑलरेडी और उसमें से ही उसको क्वेश्चन बनाने हैं। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, तो तुम देख लो कि हर बार पेपर में ना 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से दिखेंगे। या तो वो तुम्हें ऑप्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे या फिर उन पे सीधा-सीधा क्वेश्चन होगा। तो फिर ऐसे ही एमएसपी पे क्वेश्चन आता है कि जो एमएसपी वाली क्रॉप्स है ना, उन पे सवाल पूछेगा वो। या तो वो ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी या उन पे सीधा-सीधा सवाल होगा। ऐसे ही फिर जियोलॉजिकल साइट है, ऐसे ही फिर जीआई टैग की लिस्ट है। तो ऐसे 13-14 थीम्स हैं यूपीएससी एग्ज़ामिनर के लिए, जिससे वो सवाल पूछता है। और अब फ़ायदा क्या है इन चीज़ों को करने का? अगर आपकी नॉन नेगोशिएबल से कट ऑफ निकल रही है, स्केलेटन की आपने कर दी, तो अब इस पे फिर क्यों जाना पैटर्न या रैंडमनेस पे? तो इसके लिए सीधा-सीधा आंसर मेरा ये होगा कि भई देखो, अगर लाइन से ऐसे रैंडम 5-6 क्वेश्चन आ गए ना प्रीलिम्स में और कोई ऐसा बंदा है जिसका 3-4 प्रीलिम्स नहीं निकले हैं या किनारे पे पास हो रहा है, उसका वहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा पेपर में। उसको आगे पन्ना पलटने में मुश्किल होगी कि भई मैं आगे चलूँ तो क्या करूँ? वो अपने आप को क्वेश्चन करेगा, अपनी पूरा फ्लैश करेगा उसका पूरा जो साल होगा ना कि कहाँ किस दिन वो नहीं पढ़ रहा था, किस दिन वो पढ़ रहा था, किस दिन वो पार्टी कर रहा था। तो ये चीज़ जब फ्लैश होगी ना तो वो चीज़ आगे उसका पूरा स्पिलओवर इफ़ेक्ट जाएगा आगे वाले क्वेश्चन्स पे। और ऐसे लाइन से अगर 5-6 क्वेश्चन आ गए तो मतलब खत्म है फिर बंदा वहीं पे। तो इस ऐसे एरियाज़ को टारगेट करने का फ़ायदा ये होता है कि भई पेपर में ना तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भई चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मैं हैंडल कर ही लूँगा। ये रैंडम एरिया इस वाली चीज़ से आया है, ये तो पढ़ा हुआ है। वैसे ही होता है ना जैसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो तुम्हें क्वेश्चन का एक वर्ड भी समझ आ जाए तो तुम पूरा आंसर खींच देते हो उसपे। तो ऐसे अगर पेपर में तुम्हें फ़ैमिलियर टॉपिक्स दिखते हैं ना या फ़ैमिलियर वर्ड्स दिखते हैं ना, ऐसे रैंडम क्वेश्चन्स में भी, तो एक अंदर आता है कि हाँ भाई, तुम्हारा सबकॉन्शियस जाग जाता है कि भाई चलो ठीक है, मैं ये हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी कवर। तो इसका फ़ायदा ये है। अब और एक और चीज़ कि ये ना एक तरह का कुशन प्रोवाइड करेगा तुम्हें कि भई अगर तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल वाली चीज़ गलत हो रही है, बाय चांस तुम कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पाए या तुम जो स्केलेटन की वाला है उसमें 2 ऑप्शन में फँस गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भई मैं कहाँ पे अब कौन-सा ऑप्शन टिक करूँ? तो एक जो 5-6 क्वेश्चन का जो कुशन होता है ना ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे कट ऑफ भी इतनी कम जा रही है और कॉम्पिटिशन इतना हाई है, तो तुम समझ लो कि उसका कितना फ़र्क पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ऐसे 13-14 थीम्स हैं जो आइडेंटिफ़ाई करे हैं मैंने थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। तो तुम उनको देखना और समझ आ जाएगा कि भई इस ये ऐसे रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है पेपर में, है ना? कि मतलब कु इतना बड़ा पेपर है तो कुछ ना कुछ फिलॉसफी तो होगी ना हर क्वेश्चन के पीछे, कि भई तुम्हें इतना बड़ा कोई कोई एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है तो क्या फिलॉसफी है जो एग्ज़ामिनर फॉलो कर रहा है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही हो गया, तो भी क्या मतलब बनता है उसको पूछने का? यूपीएससी के पेपर में, वही मतलब बनता है कि भई देखो, एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में और इतनी सारी डायनेस्टीज़ आई हैं यहाँ पे, इतने सारे लोगों ने राज करा है इंडिया की, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। तो सेंस बनता है कि भई तुम ऐसी चीज़ें पढ़ो जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, है ना? जिसके लिए कंट्री क काम कर रही है। तो ये सेंस बनता है और सेम चीज़ जाती है जैसे एमएसपी वाली क्रॉप्स के लिए। तो मतलब क्रॉप्स पूछ रहा है तो वो क्यों पूछ रहा है? भई एमएसपी वाली क्रॉप्स है तुम्हारी देश की 45% जनता है एग्रीकल्चर में और वो उन क्रॉप्स को उगा रही है। तो भई सेंस तो बनता है ना भई उनको पूछने का। तो ऐसा नहीं है कि हम रैंडम चीज़ें उठा के पढ़ रहे हैं। तो एक सिंपल सी फिलॉसफी है इन रैंडम टॉपिक्स के पीछे भी और ये पैटर्न आइडेंटिफ़ाई ईज़िली हो जाता है और काफ़ी हेल्प करता है ये पेपर में। और जब अगर जीएस अच्छा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद ना फिर सीसेट में भी इंसान करता है और जीएस में ही
इतना ऐसे रैंडम टॉपिक्स आ गए। सबसे ज़्यादा रैंडम मुझे लगता था तो वो 2023 वाला पेपर था। उससे ज़्यादा रैंडम कुछ नहीं था। उसमें एक्सपेरिमेंट सा करा था यूपीएससी ने कि ऑप्शन स्कीम भी पूरी ऐसे चेंज सी कर दी थी। और मुझे लगता है कि उस पेपर में जितना कंफर्टेबल मैं था ना, शायद कोई नहीं था। अ, उस टाइम 75 अराउंड कट ऑफ थी और मेरे 117 नंबर थे और मैं इतना कंफर्टेबल था उस पेपर में कि मतलब मैं देख रहा था, मतलब मुझे फ़ील हो रही थी भाई कि मतलब कौन-सा ऑप्शन कैसे सेट करें। मतलब मेरी नमन से बात हुई थी उस टाइम 2023 के पेपर से पहले और हमारा एक ग्रुप था, उसमें इसने एक वीसी ली थी और इसने उस टाइम पे 30-35 कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई स्केलेटन की वाली और रैंडमनेस वाली चीज़ें मुझे पता थी और स्टैटिक मेरा ठीक है। तो उस पेपर को ना मतलब मैंने इतना ईज़िली स्मूथली सेल करा था ना, मैं बता नहीं सकता। और 117 नंबर लाना उस आई पेपर रिमेंबर उस टाइम पे शायद ये 130 प्लस मार्क्स बताता था, मतलब अनऑफिशियल कीज से, ठीक है। ऑफिशियली 117 हो गया, लेकिन सोचो अब लोग बोल रहे हैं 80 कट ऑफ जाएगी और 130 लेके बैठा है, तो वो इट्स लाइक कि अब तो जो हो गया, अब तो आगे का देखना है। मतलब वो वाली बात है, शादी हो चुकी है अब, ठीक है। अब शादी करके घर पे ले आए हैं हम। वो वाला आगे कुछ बचा ही नहीं है अब। अब मेन जो कॉन्क्वेस्ट हो चुका है, एब्सोल्यूट कॉन्क्वेस्ट हो चुका है। कुछ बचा ही नहीं है, ₹1 का भी डाउट नहीं है कि कुछ। अब एक ही चीज़, वही मैंने बोला ना, अब भगवान ही रोक सकता है बस, कि भई ओएमआर में कुछ गलती निकल के आ गई तुम्हारी, तुमने ओएमआर हुँ। गलत भर दी, ठीक है? वो ऐसा कुछ हो गया, मतलब भाग्य-भावी खराब है, फिर वही रोक सकता है बस अब तुम्हें। मतलब उसमें तो दम नहीं है कि वो तुम्हें कोई दूसरा बंदा रोक दे, थर्ड पार्टी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये चीज़ अब। और इसमें और एक और सेगमेंट पे मैं बात करना चाहूँगा, वो है कि माइक्रो थीमेटिक पीवाईक्यूज़, जो कि मतलब 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट है, जिसके सारे हम लोग 2050 क्वेश्चंस इन द एंटायर प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बात क्या है कि जैसे हमने कहा था कि इर्रेलेवेंट रैंडम क्वेश्चंस नहीं है ये, दे आर ऑल पिक्ड अप, हैंड पिक्ड पर्टिकुलरली, कि जो केवल रिलेवेंट है और हैंड पिक्ड है प्रीवियस ईयर एग्जाम से, अदर यूपीएससी एग्जाम से, स्टेट पीसीएस से, एंड इवन लाइक अगर आपको पता होगा तो फिर 2006 से 2009-10 के बीच में देयर यूज्ड टू बी ऑप्शनल का प्रीलिम्स एज वेल, कि मतलब ऑप्शनल के प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन उठाए गए जिसके पेपर मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टू द एक्सटेंट कि हम लोग किस हद तक हम लोग डेस्परेट है तुमको प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए, कि इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड इससे एक तो रीइंफोर्समेंट बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुमको थीम्स एंड कॉन्टूर्स पता चलेंगे कि भाई मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो डज यूपीएससी। तुमने वहां से क्वेश्चन उठाए, अब कहीं ना कहीं एक आध ऑप्शन, कुछ आंसर, कुछ एडिशनल बूस्ट तो मिलेगा यार तुमको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लैंग्वेज और फ्रेमिंग पता चल जाएगी, कि जो स्केलेटन की का सबसे सेंट्रल कॉन्टूर है कि तुम्हें लैंग्वेज पता चले और तुमको कैसे फ्रेम करना है वो पता चले। ये सब कुछ जो है वो माइक्रो थीमेटिक पीवाईक्यू से पता चलेगा। रैंडम पीवाईक्यू रोज उठो रैंडम 50 सवाल सॉल्व करो, उसका कोई मतलब नहीं है। Questions are meant to be solved only for the reinforcement of your knowledge and only for the identification of themes. उसके अलावा और कोई उसका पर्पस नहीं है, एंड वो पर्पस केवल और केवल यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने से नहीं होता है, यूपीएससी के ही क्वेश्चन करने से बनता है। एंड लाइक टू टॉक अ बिट अबाउट द शेड्यूल, जैसे एक कॉमन क्वेरी है कि सेशंस कैसे कंडक्ट होंगे और टेस्ट कैसे रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि सिंस वी हैव गिवन ओनली शेड्यूल फॉर फिक्स शेड्यूल फॉर दी टेस्ट इटसेल्फ, कि जो माइक्रो थीमेटिक पीवाईक्यू टेस्ट है, और टेस्ट से पहले जो सेशन है ना, इट विल कवर द थीम्स अराउंड दिस टेस्ट। कि मतलब अब जैसे यहाँ पे सेशन 1 विल कवरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब जिसमें प्रीएम्बल है, सिटीजनशिप है, यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब कि भाई आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, ये सिटीजनशिप वाला 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये वाले आर्टिकल वो कवर कर लेगा। सिमिलरली प्रीएम्बल में क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, तो ये वाला सेशन ये कवर करेगा। सिमिलरली फंडामेंटल राइट डीपीएसपी वाला जो है ये वाला कवर करेगा, और जो ये जो सेशन है ना, जो सेशन पहले ये प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, सो दैट यू वुड बी एबल टू वॉच देम एट योर कन्वीनियंस। कि तुम आओ और फटाक से, तुमको 1x पे देखना है तो 1x पे देखो, 1.2x पे देखना है 1.2x पे देखो, बट डू वॉच देम, दे विल बी लाइक एब्सोल्युटली रियली ऑफ ग्रेट हेल्प। क्योंकि ये फॉर्मेट में सेशंस नहीं है, दे आर नॉट बल्कि 1-1.5 घंटे के रहेंगे, सो दैट कि फटाक से आपका रिवाइज हो और आपको फिल्टर आउट कंटेंट कर पाओ कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं नहीं पढ़ना। उसके बाद में अगर कोई एब्सोल्युटली बहुत ही रिलेवेंट चीज है, बहुत ही किसी चीज पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है, तो वो पार्ट भी इस सेशन के सहारे रहेगा। उसके बाद में फिर ये जो एक्टिव रिकॉल सेशन रहेगा पॉलिटी का, ये लाइव रहेगा, और ये जनरली 13th या फिर जिस दिन दिया हुआ है उसके एक दिन बाद रहेगा। तो इस केस में यू विल बी एबल टू गेज कि इस तक जो भी पढ़ा वो याद है क्या, कितना याद है। डिफरेंशियल लर्निंग, कि नहीं याद है तो फिर कौन सा वाला पार्ट नहीं है, क्या मुझे वो
वो बोरो कहाँ से किया है उसमें टेबल वाला याद नहीं है, या फिर मुझे वो जो फंडामेंटल राइट्स में जो टेबल है वो वाला टेबल याद नहीं, मतलब कौन सा टेबल याद नहीं है, यहाँ से पता चल जाएगा। अब कुछ-कुछ जगह पर पे सिमिलरली देयर वुड बी लाइक बूस्टर सेशंस, कहीं पे ऑल यू नीड टू नो सेशंस नहीं है, कहीं पे बूस्टर सेशंस है। उसका पर्टिकुलर पैक अब जैसे यहाँ पे कहानी है, यू विल बी एबल टू नो कि भाई इसमें क्या है, बट बात क्या है कि इवन मतलब तुमको सब कहानी पता हो, उसके बाद भी यू वुड हैव टू provide for certain factual things, certain extra things. तो उस एक्स्ट्रा फैक्चुअल थिंग्स को पर्टिकुलरली हमको लगता है कि भाई यहाँ पे कवर करना चाहिए। तो फिर स्ट्रैटेजिकली डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द थीम, हम लोगों ने बूस्टर और ऑल यू नीड टू नो सेशंस में डिफरेंशिएट किया है। तो आपके लिए तो उसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता जस्ट बिकॉज कि आपको फिलोसफी पता चले, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके बाद में सेशंस के बाद में देयर वुड बी रैंडम इज नॉट रैंडम थीम्स पे भी कुछ टेस्ट रहेंगे कि जो पीवाईक्यूज में रिफ्लेक्टेड है। ऐसा नहीं कि रैंडम इज नॉट रैंडम, रैंडम थीम्स नहीं, मतलब हम भी अपने मन से कहानी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इतनी सारी पेपर्स, इतने सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद में, और ऑफ कोर्स मतलब मनीष का विजडम है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है, नमन का अंडरस्टैंडिंग है, उन सबको मिला करके मतलब समेशन ऑफ ऑल द विजडम्स बना करके इन टेस्ट को बनाया है। और उसका एक स्पेशल पैटर्न रैंडम आइडेंटिफिकेशन की जो सेशंस है उसका एक इंडिपेंडेंट शेड्यूल दिया हुआ है। सो दे विल बी लाइक कनेक्टेड विद दी स्टैटिक, और जो सिलेबस अपना मतलब साइड बाय साइड चल रहा है उसके साथ में ये थीम्स चलेंगे। एंड ऑल्सो देयर वुड बी स्केलेटन की सेशंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट। अब उनको भी आप देखोगे तो फिर दे आर प्लेस्ड एट अ बिट डिफरेंस, और फिर एकदम साथ चलते हैं वो। तो फिर इसमें फर्स्ट नमन बेसिस बताएगा कि किस बेसिस पे उसने ये अप्रोच निकाली है, विच इज लाइक रिमार्केबल, ग्राउंड ब्रेकिंग, एस्टोनिशिंग, रेवोल्यूशनरी, जो भी कह लो, जो भी सारे फ्रेजेस आपको पता है वो सब कैरी करता है। अब मैं खुद भाई 110 लाख के मैं खुद इतना अमेज्ड रहता हूं, तो फिर आपकी तो क्या ही बात है। तो ये पर्टिकुलरली ऐसे स्टैगर्ड है, सेग्रीगेटेड है, सो दैट यू वुड बी आल्सो एबल टू, मतलब केवल सोचो ना, अब जैसे हम लोग एथिक्स में हमेशा बात करते हैं कि केवल इंफॉर्मेशन दे के जिससे एटीट्यूड चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं रहता, उसके बाद में एटीट्यूड चेंज करके उसको बिहेवियर कन्वर्जन करने की अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है। सो दिस 15 डेज गैप इज टू गिव यू बिहेवियर चेंज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एटीट्यूड चेंज है, बिहेवियर चेंज है, तो इसमें आप कंटेम्पलेट करो, पॉन्डर करो, and you will be able to like come up with it. And same is the case with like these mindset sessions, जिसके सहारे you will be like managing all the things, will like take them all together. And इन सब के बीच में the contemporary affairs sessions will be held in the month of April. And ये मतलब बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे, which would like remove all the clutter, सारा जंक, सारा मसाला, मतलब सारा अनमसाला सारा हटा देंगे, और बिल्कुल मलाई, बिल्कुल मसाला आपको पकड़ाया दिया जाएगा कि बस यही कर लो। तो इट्स लाइक मेरा इंटेंशन ये था कि भाई सब कुछ फुल प्रूफ बता दिया है, सब कुछ किया है, एंड इट टुक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, डिलिब्रेशन, ह्यूरिस्टिक्स while designing this schedule. And like please be considerate of the fact, और मतलब ट्रस्ट करो, मेरा बार-बार बोलने का मतलब ही ये है कि ट्रस्ट करो एंड फॉलो इट लाइक ब्लाइंडली। आई एम प्रीटी श्योर कि like no one's gonna stop you from clearing prelims with flying colors this time. चलो अब सेशन वेशन के डाउट वाउट हो जाए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन हाँ, आस्क, दे कैन रेज द हैंड, अगर मतलब दे विल हैव टू फर्स्ट कम टू द स्टेज टू स्पीक अप, है ना, एंड देन दे कैन रेज द डाउट। विल कीप इट शॉर्ट, ऑल्दो हमने सारी बातें सारी कवर कर दी, लेकिन स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क। Hello. हाँ, Am I audible? yes you are. Sir, I had three questions. First one being that for certain candidates, if their starting base is not very strong, how should they, like, will they be benefiting equally in the course? Second would be that will the microthematic PYQ test be also containing questions from the incorrect options of PYQs, like which we have seen in my multiple videos in YouTube, that incorrect options are often repeated in upcoming year questions in EPSC. And third one would be a subject specific, and personally for me, this one would be that I'm covering economy from Munal sir note, and it's like quite significantly heavy. So like, is there any way out of it? Please leave out any question if it is redundant. So to answer your first question, if you are like in the first attempt,
I think you have come to the right place, because this is one area. So, like I have told in the beginning, prelims is one stage whereby getting swayed away from the actual direction is most possible, and particularly the propensity is very higher for those who are in the initial stages. Our approach of, अब तुमने देखा होगा कि there is considerable gap between two tests. So there will be given opportunity for you to go ahead and study this text from the standard book by watching the test, so that sessions will act as a guide for you to what to read and what not to read. Also, they'll give you a bit of conceptual understanding as well. But remember, they are not a foundation course. There won't be like एक घंटा में केवल आर्टिकल 14 नहीं पढ़ाएंगे, but it will be enough for you to be a one-stop solution for anything. Secondly, you talk about micro-thematic test, like questions. We aren't making any questions by our own, because फिर तो वही फिर रैंडम ही बन जाएगा वो, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करके बना रहे हैं, खुद के से क्वेश्चन कोई नहीं बना रहा है. एंड थर्ड, यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द इकोनॉमी. Economy will be completely dealt by major part by me, a part by Naman and a part by Manish, but majorly it will be dealt by me, and it will be a crisp one-stop solution for everything. मतलब अब मैं explain नहीं कर पाऊंगा कि what it is, but it's absolutely crisp, it's absolutely one-stop solution. कोई bulk नहीं है, और जो आता है वही पूछता है. And I am someone who has not only background in the economics, but also I have worked in the similar field as well. So you would be amazed to know कि मतलब you have found the right solution, and you have like thankful that you have come here to pursue your dream. See, with respect to the notes and all, ठीक है, although the notes are not final, it is a rough draft I was making, है ना. So you can look at the notes, what I am, what will be provided to you in the form of notes, है ना. Now see, let's say we have to study this salient feature chapter, है ना. So I have covered this in the 10, 12 headings, है ना. Now in this, this is what I have wrote over here. Okay, I'll rest of the things I'll explain you. This is a conceptual part. I'll explain you in the recording. Okay. Apart from this, let's say what this is separation of theory, there's separation of power and checks and balances. Now this is the fundamental thing which you have to learn. Apart from this, everything is conceptual. I'll tell you in the recording. Similarly, with respect to unique blend of rigidity and flexibility, अब इसके what are the 16 cases where parliament can use the simple majority to change the constitution, वो आप अब लक्ष्मीकांत में जाके आपको देखना है. वो चीजें I will not write over here. ठीक है, I'll not do that those clerical काम. ठीक है, clerical काम आप अपना you use the standard books for polity, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. फॉर दीज 3 सब्जेक्ट्स वी विल बी डूइंग दिस थिंग कि जैसे लेट्स से फेडरलिज्म आपको समझाना है. फेडरलिज्म का बेसिक कांसेप्ट ये है आपका. ठीक है, दिस इज व्हाट इज फेडरलिज्म. सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू व्हाट इज दिस. ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द यूनिटरी बायस केसेस, है ना. 5 केसेस विद रिस्पेक्ट टू वो है कि वेयर सेंटर कैन मेक द लॉज. ठीक है, देन देयर आर अदर 10-15 cases etc. ठीक है, all those are mentioned in center state relation. For that you will have to refer to similarly with respect to, let's say I was writing over here somewhere table and all this, it is a beautiful patchwork, है ना. It has been borrowed. So this is the conceptual part. ठीक है, from where the things have been borrowed. Now there is a separate table in Lakshmikant. Instead of writing the table over here, you can go and read the table in the Lakshmikant. I'll tell you what to read, what not to read. If there is any conceptual part, I'll explain you. For example, what is parliamentary form of government, what is the fundamental difference, how it is, what on which grounds questions are asked. I'll tell you all those the conceptual things, all those areas where the questions are asked, or all those areas which you need to know, है ना. Apart from that, if there is any absolutely clerical work, ठीक है, that clerical work you'll have to do on your own from the books. For example, schedule. अब schedule में this is the conceptual part कि schedule 2 में it is the allowances and all of heads of executive and legislature. Third is oaths and affirmation of members of executive. This is a conceptual part. Apart from this, who are the members, who are the heads, अब ये आप, this is a clerical work, you can go and read your notes. Similarly with respect to preamble, अब this is a conceptual work. ठीक है, conceptual work, what is the exactly preamble. ठीक है, अब इसमें क्या पूछेंगे, आइडेंटिटी कार्ड है ये है, फिर उसके बाद उसके बेसिक आपका ये चीज पूछेंगे प्रीलिम्स में, वो पार्ट है, प्रोविजन है, सोर्स है, क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल पार्ट है, व्हाट डू वी मीन बाय सॉवरेन, इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछेंगे. तो आई विल टेल यू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी और व्हाट ऑल keywords you need for the mains as well. ठीक है, I'll give you all those things. Apart from that, if you expect me कि I'll drop each and everything in the notes, I am making handwritten notes. We are not copying using the
copy paste principle है ना of the standard books, so you will not get those things. You will get the notes in the form of these handwritten. Same things I am doing in the ethics course also, and in SIP also we are doing similar thing. So we will be doing same thing in this, although it will be more elaborate. जैसा भी ये है कि अब ठीक है इसमें मैंने लिख दिया, अगर SIP होता तो ये तो लिखते ही नहीं, हम बोलते हैं आप जाके देखो, you are not child, ठीक है. But prelims में we will do something मतलब spoon feeding also, but it will be not a absolute clerical spoon feeding. I hope you, socialist में this is a fundamental concept. Now what do I mean by this? I'll explain this in 1-2 minutes. ठीक है. If you expect me कि I'll explain you the socialist word in 15 minutes like it is done in the foundation courses, those things will not be done. मतलब we are very clear in this कि we will not be teaching foundation course में तो 150 घंटे में पढ़ाते हैं, 150 hours they take to complete the polity, 50 lectures of 3 hours each. We will be completing around 12-15 hours. ठीक है. तो उसमें यही है, जैसे सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का बेसिक कांसेप्ट ये है आपका, ये these 5 seekers, this is what is the necessity for you should be aware of these things. अब ये I'll explain you, apart from this if you are able to solve the questions or not, वो सब तो आपको देखना पड़ेगा. But ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत में if everything is written आप आपको सब कुछ थमा दे रहे हैं. It is the processed, मतलब these are the processed notes which I'll be processing using my brain, and after processing I have made some notes, and after making them I'll explain them in the lecture. That's why it is compulsory to watch all those lectures. While watching the lecture you will identify what thing is to be read, what thing is to be skipped. After that you will take the decision. Similarly, let's say union territory है, अब इसके अंदर अभी और बनाना है मेरे को, this is a रफ खाका, ठीक है. अब ये citizen रफ खाका है, fundamental rights, this is a रफ खाका. Well, this is a rough draft, but I think you have understood what will be provided you in the form of notes. And these are like process notes. These are guiding lights for you to actually read standard books. And wherever there are not standard books, then they will be detailed also. Active recall sheets. I'll use my own active recall questions, but I'll not provide those questions to you. We'll come. I'll test you whether you have learned those things or not. But if you expect absolute spoon feeding like other courses, we'll not do this. We have never done this. We never. Nobody did this to us also, and we will not do these things to you also. Absolute spoon feeding, clerical spoon feeding, we will not do. With respect to this PDF of the papers, we will be giving the questions in the form of quiz on the portal. For solutions, we will give you the PDF. You can read the solutions in the form of PDF. You can get them printed, but the questions will be available on the portal only. And other than this, what are the questions? How many questions will be? 50 questions each test. How all those questions are handpicked by Nikhil only. Okay? For polity, Nikhil is handpicking the questions of entire this. जो भी गत्ता है 15-16 क्वेश्चंस का. How do we have to make our notes from after studying from basics notes? हाँ वो आपको करना पड़ेगा. I'll guide you. I've shown you what I am doing. ठीक है. Apart from this, you will have to identify. I'll tell you what things are to be read, what things are to be skipped. उसके बाद अब आपको अपना बनाना है. I never recommend कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम के notes बनाओ. This thing is one thing that you can do is you can scribble a bit of discussion on these handouts. Since we'll be giving them in downloaded form, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ये secure कर रहे हैं. We want them to have you. इसलिए आई एम लीविंग सम स्पेस. Exactly. आई एम डेलिबरेटली लीविंग. ये देखो यहाँ थोड़ा स्पेस. अब इसमें लिखना है मेरे को, ठीक है. मैंने पूरा लिखा नहीं है. अब बुलवर्क्स के आगे 4 बुलवर्क्स लिख दिया. इफ यू एक्सपेक्ट मी कैग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखूंगा, आई विल नॉट राइट. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलवर्क, हाउ कैग इज अ बुलवर्क, बस ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. दिस एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली व्हाट इज नीडेड इन द प्रीलिम्स. ठीक है. दिस एक्चुअली कंसेप्चुअल पार्ट. अब I'll deliberately leave some space so that you can scribble these things on your own. But I hope everybody is on the page कि what things will be provided in the notes. It is not a copy paste note. I am myself मैंने अपने टाइम पे भी बनाया यार ये नोट्स. तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ. मतलब मैं अब तुम सोचो, लेट्स समझ रहे हो ना. आई एम प्रोसेसिंग द नोट्स, आई एम मेकिंग द नोट्स. और वो भी ऐसे नहीं है कि ऐसे कुछ भी बना दिया. कलर वलर आई एम इंश्योरिंग कि थोड़ा कलर कोडिंग हो. Really like our approach of active recalling, but I do not understand. What do you mean by reinforcement? You need mentioned in the reinforcement. और reinforcement जो आपने पढ़ा है वो आप टेस्ट के थ्रू में you will reinforce the ideologies. तो अब तुमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि भाई मतलब कौन से सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है, कौन से सिटीजन के लिए नहीं है. There will be question of some sort of thing in the paper. हम लोग सेशन में भी बता देंगे, बट तुम्हें भी तो याद करना पड़ेगा ना. Unless and until you do them wrong, तो तुम कैसे करोगे? Aside with respect to skipping to the prelims, I have posted 2 posts on my channel. First post was I categorized the people in 3 categories.
case 1, case 2, case 3. You identify which case do you fall in. If you have cleared prelims earlier, any मतलब if you have cleared it any time, मतलब एक आधी बार भी निकला है, तो you fall in the category of category 2, where you can take the risk of stretching it till January end या फिर till 15 February. अब उसमें क्या करोगे आप, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया, you can go and read that. And other thing that you can do is maybe like just watch sessions and answer test. That would take you around 3 hours of work every day. मतलब 6 hours per session per test का work है वो. तो फिर you can do that. I mean, if you want to be absolutely comfortable. और recent time पे अगर नहीं निकला है तो, क्योंकि अभी कैसे हो रहा है ना कि किसी का पहले 2021 में निकला है, 22 में निकला है, that pattern has shifted a lot. तो लोगों का नहीं निकल रहा है मतलब. And I don't want you to be that guy कि जिसने means पढ़ा फरवरी तक और फिर उसका प्लेन से नहीं निकला. ठीक है. एंड विद रिस्पेक्ट टू सीसेट, कौशल we will not be covering CSET over here, but ठीक है, जनरल गाइडेंस जो मैं देता ही हूँ, लास्ट ईयर भी दी थी कि हाउ टू हैंड पिक द क्वेश्चन, हाउ टू स्मार्टली यूज, मतलब जो 10 सेकंड्स वाले वीडियो लास्ट ईयर बनाए थे, आई विल मेक सम वीडियोस दोस, आई विल बी मेकिंग दोस अवेलेबल, बट आई विल नॉट बी टीचिंग, मतलब विल नॉट बी कवरिंग CSET, नो PYQs, नथिंग. जनरल गाइडेंस जो होती है एज अ बिग ब्रदर टाइप, बड़े भाई की तरह से नॉर्मल बातें जो मेंटरशिप वाली होती है, दोस थिंग्स वी विल डू. कि हाँ, जैसे रिमाइंडर्स मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, दोबारा बना दूंगा. मैंने जैसे वो बनाया था n इक्वेशन इज इक्वल टू n वेरिएबल, वो बनाया था तो दोबारा बना दूंगा. मतलब 10-10 सेकंड वाली जो चीजें, छोटी-छोटी चीजें आई टोल्ड लास्ट ईयर, वो सब मैं दोबारा बना दूंगा. और कुछ नया पैटर्न दिखेगा तो नया भी पैटर्न बना देंगे. बट ये नहीं है कि यू विल एक्सपेक्ट मी कि टाइम एंड वर्क समझा दो. टाइम एंड वर्क नहीं समझा सकते. मतलब कोई भी ऐसे रैंडम टॉपिक समझा दो, वो पढ़ा नहीं सकते यार, वो देयर इज अ लिमिटेशन. परेटो ऑप्टिमाइज नोट्स मिलेंगे, सारे बता दिया नोट्स कैसे मिलेंगे. हाउ टू रीड, ठीक है. विल द सेशन स्टार्ट फ्रॉम January 6, मोस्टली द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन 6 January ओनली. काइंडली वाइंड अप, ठीक है. विल द कंटेंट ऑफ रैंडमनेस, हाँ, कंटेंट ऑफ रैंडमनेस मशीन, मनीष विल प्रोवाइड यू सम कंटेंट. हाँ, नहीं तो फिर कंटेंट क्या है, रहेगा. वो तो फिर टॉपिक ऑफ लिस्ट ही देने वाली बात है ना, वो तो आपको दे ही देते हैं. ही विल टेल यू सम कंटेंट आल्सो. कुड यू प्लीज शेयर सर पीओ नोट्स लास्ट ईयर की तरह मच नहीं. हाँ, ठीक है. पॉट इंटरलिंक के बिना तो कुछ नहीं होगा. आई विल रिकमेंड कि अब मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द नोट्स ना, तो इट इज वेरी टफ फॉर मी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीलिम्स पॉलिटी एंड मेंस पॉलिटी. मतलब तुम देखो, मैं सारा मेंस का ही माल मसाला लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो इफ यू आर वाइज इनफ, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, प्रिपेयर दीज थिंग्स फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव अलोंग साइड. ठीक है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो सारा मेंस का अभी से ही कर लो, तो इट विल हेल्प यू इन दिस व्हेन यू विल राइट द मेंस. I don't have confidence while making. भाई एक्टिव रिकॉल शीट्स का इट इज लाइक वो खुद बनानी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है. इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट इज पेन गिविंग प्रोसेस आल्सो. इतना कॉन्फिडेंस गुड ऑप्शनल फॉर आईफोस का निखिल बताएगा. आईफोस में एक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज ऑप्शनल, जो निखिल ने बहुत सोच समझ के लिया था, एंड इट इज एक्चुअली रिवॉर्डिंग आल्सो. सर आई एम नॉट अली, ठीक है. इफ एनीबॉडी इज हैविंग द क्वेश्चन देन दे कैन आस्क. आई थिंक I've covered the. And similar is the case with like someone asked about science and tech and environment. So science and tech, environment and economy, there will be specialized focus on it. Environment will be dealt by both me and Manish, क्योंकि Manish बहुत ही अच्छा, Manish has excellent command over science and tech, because I myself have gotten many things clarified from him. So ऐसा he is a very good at it. So he'll be like giving more focused details also. एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी उसी बता देंगे, सब कुछ उसमें बता देंगे. हाउ टू टैकल मतलब बिना कॉन्सेप्ट के कैसे बताए. एंड सेम विथ एनवायरनमेंट आल्सो. एनवायरनमेंट का conceptual part and like institution वाला part I'll be dealing it, and a part of the booster things Manish will be dealing it. It will be a one stop solution for all of you.